Hi everyone, welcome to my YouTube channel and I am Manish. I have 7 years of experience in business analysis in IT industry. Recently मैंने एक लाइव वेबिनार बिजनेस एनालिस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड मैंने कंडक्ट करा था जिसमें 5-6 पार्टिसिपेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और सेशन हमारा काफ़ी इंटरेक्टिव हुआ जिसमें मैं हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी कि अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं तो कैसे आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही कैसे आप बिजनेस एनालिस्ट की केस स्टडी को सॉल्व आउट कर सकते हैं, साथ ही जो एक बीए है क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करता है, साथ ही अगर आप किसी अदर डोमेन में है तो कैसे आप अपने एक बीए के लिए तैयारी कर सकते हैं, कैसे एक बीए के रोल के लिए अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। और इस कंप्लीट वेबिनार में आप ये भी देखोगे कि रिसेंटली मतलब हमारे एक पार्टिसिपेंट भी हैं जिसने एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करी है कि कैसे उन्होंने एक इंटरव्यू क्रैक भी किया और विद द हेल्प ऑफ कि रिसेंटली मैंने एक ई बुक भी लॉन्च किया था जिसमें मैंने 105 क्वेश्चन एंड आंसर कवर अप किए थे बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकली टोटली प्रैक्टिकल थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। और काफ़ी उस ई बुक ने उनकी हेल्प भी करी है। तो ई बुक अगर आपको भी एक्सप्लोर करना है तो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें मैंने यूट्यूब की ई बुक की लिंक दी हुई है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारी मैं बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर टिप्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स देने वाला हूँ। एंड तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। थैंक यू। Now we are ready to start this session webinar. Business analysis question and answer participants. Welcome to you all. Are you able to hear me all? Yes. Okay, great, Yeah. great. Okay. So as you know my name already, my name is Manish Kumar. I have 6 year experience in business analyst. As a business analyst, I have been working. I have already worked multiple projects like that, e-commerce project, ERP project, CRM project, and all right. So, what the motives of this conducted to a webinar, a business analysis webinar, so that you can learn a lots of questions, right? You can be a confident, you can be hesitation free, right? So that's the main motive of this conduct, right? In this session, anybody can ask any question related to the business analysis, right? And anybody can answer. If do you know how to answer, you can answer, right? You should not here to hesitate. Anybody can answer, right? Okay, so let's introduce yourself. Okay, start Ankur about yourself. Just little brief about yourself means what you are doing currently and what past experience you have. Or are you business analyst or just are you looking for any job? Just brief me about yourself. Right. Yes, good morning. Good My morning. name is Ankur, and right now I'm working as a BA in Yokohama off-highway tires. Since I am a rubber technologist, not from the IT domain and all, but I have transformed in IT domain in manufacturing industries, and I have the little knowledge of that, mm, I'm looking for the business analyst role in future in the IT sectors. Since still I'm a BA only, but in manufacturing domain, I just want to shift my career in IT industries. This Great. is this is the overall, and I am having the 10 years of experience overall. But Hmm. as a BA, it is relevant to the 4 years, 4 years or the almost 5 years, you can say, sir. Great, Ankur. Ankur, you can call me my name Manish, right? I don't need to call sir. Right. I'm Okay, Manish. I'm fine. Right. So I think Ankur, you have already 5 years experience in manufacturing. So I think you okay. have already using since last 10 year ERP and all. ERP को आप यूज करते होगे, I think. Not sir, not ERP. We used to do the requirement gathering and all, and but not ERP module. Like that for your material management, procurement management for Yeah, this. yeah, 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 yeah. Great, Yeah. great. So, okay, great. So, okay, Kavyans, let's introduce yourself. So, let me brief about yourself. Yeah. Yeah, hi. My name is Kavanch. I have around 2 years of experience. 1 year in the logistics field. I have worked as a business analyst, created BRDs, FRDs, and all. And in Mm-hmm. my previous company, I worked as a business analyst in software on ERP, CRM, web application, mobile application, and various. And currently, I'm working in TechWare as a business analyst. Great, Yeah, great, that's all. great. I think you already recently got your job, right? Yeah, correct. Okay. Congratulations, My Kavyans. first day was. Thank you so much. Okay, great. Okay, now Sanket, please introduce yourself. Yes. Yeah.
Are you able to hear me? Yeah, we are able to hear you. Just Yes. brief yourself, right? Yeah. My name is Sanket Jadhav. I am currently working as a senior system engineer in Infosys with Mhm. 5 years of experience. Great. I want to switch my domain to business analyst, and so how can I leverage my previous experience as relevant to business analyst role, and which project should I include on my resume? That's my question. Okay, this is the generic question. We will go further for the more deep analysis related to the question and answer, right? Just here means what's your background, means what type roles and responsibility you are doing. Cybersecurity. Cyber security you are right? Yes. Okay, great. Okay, we will go into deep dive, right? Okay. Next, for the Sure. next, right? And okay, Salender, now your turn. Please brief yourself. Hello everyone. My name is Sharint Kumar, and I have come to my engineering, and I have the 4 years experience in e-commerce domain as a business analyst. And currently, I'm looking forward some better opportunity in the senior business analyst domain. So that's why I'm here. And let's deep dive on that part. And I have many questions regarding that because at this time I'm trying to give some interviews and facing some problems. So that's why I want to ask some questions with Manish and the team. So if I get some really fast and good answer, so it will help for me. Great. Thanks for participating, all of you guys again. So Thank you. just I want to ask question all of you. So should I continue this session or a webinar in Hindi or English? What's your preference? I find with both English and Hindi also. Okay. Salender, what's your, and Kavyans, Ankur? Sir, in any language, sir. Okay. Great. I think everyone comfortable with the both language, no issue. Okay. So we are going for the both of mix of Hindi and English so that ताकि जब मैं इसको कहीं अपलोड भी करूँ यूट्यूब वगैरह पे तो ताकि काफी लोग इसे सीख भी पाए, राइट ओके सो जस्ट स्टार्ट 1-to-1 क्वेश्चन, राइट सो नाउ अभी से किसी को कोई भी क्वेश्चंस पूछना है बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड, यहाँ पे एक रूल्स मैंने सेट कर रखा है। रूल ये है कि कोई भी माइंड में किसी के भी क्वेश्चंस आते हैं बीए से रिलेटेड, बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड, कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, कैसे मैं ट्रांजिशन करूँ, कैसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करूँ, डोमेन नॉलेज कैसे, मतलब मेरा डोमेन अलग है, मैं किस अलग डोमेन में कैसे जाऊँ, बीआरडी क्या होता है, एफआरडी क्या होता है, एसडीएलसी में क्या क्या हम मेथोलॉजी यूज करते हैं, एजाइल स्क्रम क्या है, ठीक है, यूजर स्टोरी क्या है, या फिर स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, पूरे होल द बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड, राइट। तो आपको वो क्वेश्चन पूछने हैं। अगर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इनमें से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है, थोड़ा भी आता है, तो उसको आपको बोलना है, एटलीस्ट बोलना है, क्योंकि आपको मतलब खुद से ये प्रैक्टिस करना है कि आपकी हेजिटेशन ताकि निकले, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ये मेरा सेशन का सबसे बड़ा मतलब मोटो यही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो बिल्डअप हो, आपकी नॉलेज शेयरिंग हो, और इससे आपको भी नॉलेज मिले और साथ ही साथ जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी नॉलेज मिले। इन केस कहीं आप फंसते हो आंसर देने में, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जो आपको जज करेगा। फ्रीली एवरीवन इज ऑन द लर्निंग पाथ, सब कोई सीख रहा है, राइट। तो ऐसा खुद में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें कोई जज करेगा। यहाँ पे वी ऑल आर लर्नर हियर। ओके, ऑलराइट गाइस, Yes. ठीक है। तो Absolutely. ग्रेट। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले तो माइंड से ये निकाल देना है, हम लोग बस यार, मैं भी सीखता हूँ, मुझे भी एज ए बिजनेस एनालिस्ट, मुझे भी एज ए 6 ईयर काम करते हो गया, बट स्टिल आई एम लर्निंग, ठीक है। तो नो वन इज परफेक्ट हियर, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बेहिचक आपको जो क्वेश्चन आए आप उसको पूछना है, बेहिचक अगर क्वेश्चन नहीं आए आंसर करने की कोशिश करनी है एटलीस्ट, ताकि आपके हेजिटेशन निकले आपके अंदर से, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठो तो आप अपने क्वेश्चन को इजिली फ्रेम कर सको, राइट ना। तो लाइक अ प्रैक्टिस सेशन, मोकअप प्रैक्टिस सेशन यू कैन बोल सकते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट का एक हमारा मोकअप डिस्कशन है, वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आंसर देने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो उसमें मैं सपोर्ट करूंगा, फिर उसकी चीजें अच्छे से मैं आंसर करूंगा उसको, राइट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, बाकी अगर किसी को आंसर देना तो उसका आंसर दे सकता है, बाकी लोग म्यूट पे रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, राइट। मैं पूछूं क्या? या श्योर ब्रो, पूछिए संकेत। हाँ सर, मैं करंटली आईटी में हूँ, तो मुझे वो एसडीएलसी वगैरह सब, मतलब यूजर स्टोरेज वगैरह सब पता है। सिर्फ मैं डोमेन में कंफ्यूज हूँ, मतलब कौन सा
लोग मुझे मतलब कंफ्यूज कर रहे कि बैंकिंग अच्छा है, कोई बोल रहा है यूएस हेल्थ केयर, तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। तो आप बता सकते हैं क्या, और कौन से प्रोजेक्ट मतलब ऐड कर सकते हैं? बाकी का श्योर, नॉलेज मैंने ले लिया है, मतलब ट्रेडिंग्स कोई भी बात नहीं, आई विल तो। आंसर संकेत, डोंट वरी, यस। यू आर ऑन राइट पाथ, डोंट वरी। कोई है जो इसका आंसर कर सकता है अपार्ट ऑफ मी? Manish sir, can you try? हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल, कव्यांश बिल्कुल, आप बोलो। Shailendra there. शैलेंद्र, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। Uh, Hi Sanket, Shailendra. Can you hear me? Yes, yes. Please go ahead, Silent. So actually, Sanket, I have almost a 4 years experience to work in e-commerce domain. So all kind of framework I have already worked. But currently, market, if you are looking forward with a grown a good hike or and a good kind of the product you want to develop, I think that AI kind of the product development and the AI kind of business analysis is a future demanding project. So if you try that, so I will recommend that you can go for the AI project business analyst. Generative ad. You are correct Hmm. because एनीवन? you have already experience on the IT industry, so you can easily understand all the things. Yes, yes. Definitely. If I'm एनीवन? actually I also tried for the same domain Hmm. But I and lots of resume na, the people were add that banking related or US healthcare related project na, so I'm little bit confused. That's why I'm asking that question. no issue. Actually, what is going to happen in the market at this time? You have already experienced in e-commerce, right? Sorry, IT industries, right? Yes, yes. So if you go in the banking industry, so you have to understand the basic things of the banking, how the things are going to credit, debit, assets, liability, all the things means that the basic things you need to know about banking. If you go with the manufacturing or maybe any other kind of the industry, if you go to, you have to need to understand the basic knowledge of that particular industry. But you have already working in the IT industries, so you understand all the things, how is the developer is going to work, how the QA team is going to work, and what's your roles and responsibility. So if I'm in your place, I'm looking forward that kind of the positions. Yes, yes. And it's totally up to you. It's totally up to you that which you want to prefer for that position. I think that Manish sir will help me also for that on that part. Okay, Shailendra, thank you for your. Hello, Manish sir. या सॉरी। ओके, सो और कुछ इसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है? कव्यांश, अंकुर? ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें और मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। संकेत, जैसे कि आपने बताया, आई थिंक यू हैव सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, यू आर वर्किंग सिंस 5 or 6 years इन इन्फोसिस, राइट? Yeah, almost ठीक है, 3 years. ऑलमोस्ट 3 year। तो Hmm. अभी आप डोमेन को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, राइट? Yes, yes. ठीक है, ऑलरेडी आपने ये बोला कि मैंने बीए का काम 3 year से कर रहा हूँ, मुझे यूजर स्टोरी लिखने आता है, मुझे प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाने आता है, मुझे एसडीएलसी की मेथोलॉजी सारी चीज़ पता है, बट मैं डोमेन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, राइट ना? Yes, yes. सी, डोमेन जो है ना, अगर आप बीए की जॉब के लिए मार्केट में जाते हो तो डोमेन कुड बी कहीं से भी, आपको डोमेन मतलब डोमेन फिक्स नहीं है, जॉब के ऑफर कहीं से भी आ सकते हैं। इट कुड बी फ्रॉम सीआरएम, इट कुड बी फ्रॉम ईआरपी के लिए, इट कुड बी फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी, उसमें कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है, राइट ना? इट कुड बी हाँ. फ्रॉम एसेट मैनेजमेंट, इट कुड बी फ्रॉम योर साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल, ठीक है, किसी से भी आ सकता है। बट फर्स्ट व्हाट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि जो आपका प्रोसेस है, जो आपके बिजनेस एनालिसिस के स्किल्स हैं, उस Hmm. पे आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करने हैं, ठीक है? वाई Yes. आई एम टेलिंग लाइक दैट, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो आप अपने स्किल्स पे काम करोगे ना, जैसे कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक्सपर्ट हो, आपके पास मल्टीपल आपके पास टेक्निक्स है कि मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करूं, है ना? उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करना है, तो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी है, और अच्छे तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो या नहीं, आपको प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी है या नहीं, राइट? तो उस चीज पे आप काम करो पहले तो, ठीक है? अगर आप उसमें आपको लगता है कि यस आई एम बेटर, मैं बहुत अच्छा हूं इसमें,
देन आप ये ट्राई करो कि जो भी आपको डोमेन मिलता है, देखिए डोमेन फिक्स नहीं है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो तो एक बीए जो होता है ना, अपने स्किल्स को इजीली ट्रांसफर कर लेता है किसी भी डोमेन के अंदर, इजीली। बट उसके पीछे रीजंस कुछ हैं। अगर आपको इजीली अपने नॉलेज को ट्रांसफर करना है किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो देखिए ये एक ना बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो डोमेन नॉलेज होता है ना, अगर हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है उस डोमेन के अंदर, तो ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है कि हम उसको एक दिन में ही बन जाए, मतलब इजी नहीं है इतना। लेकिन हाँ। हाँ, टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने में किसी भी डोमेन के अंदर, राइट ना। यस। तो बट हमें, मतलब डोमेन के चीजों को तुरंत तो समझ नहीं सकते, बट हाँ हमारे पास इतनी जरूर, हमारे पास माइंडसेट, हमारे पास पावर है कि उस प्रोसेस को तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, कि प्रोसेस क्या है। अब मैं सपोज मान लो आप साइबर सिक्योरिटी में हो, कल को आप जॉब ज्वाइन करते हो ईआरपी के अंदर, है ना। अब ईआरपी में बहुत सारे मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, सेल्स मॉड्यूल होता है, परचेज मॉड्यूल होता है, फिनेंस मॉड्यूल होता है, प्रोक्योरमेंट आपको ये एसेट मैनेजमेंट का रहता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको प्लानिंग मटेरियल्स का रहता है, मल्टीपल चीजें रहती हैं, राइट ना। तो हाँ। वहां पे क्या आता है कि आपको, अगर ये देखो एट द एंड, अगर आप उस ईआरपी प्रोजेक्ट पे जॉब लेते हो, आप बोलते हो कि यस आई आई कैन डू इट, मैं जॉब, मुझे आप ऑफर कर सकते हो, मैं कर लूंगा मैनेज। जब आप जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुरंत एक दिन में आप डोमेन सीख लोगे, नहीं। बट इतना तो आपको पता है ना कि हाँ, प्रोसेस समझने की कोशिश तो करोगे ना कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, परचेज का प्रोसेस क्या है कि हमें यहाँ पे पीओ रिलीज करना है, एक परचेज ऑर्डर बनानी है, राइट ना। फिर हमें एक सेल्स ऑर्डर बनाना है, इनवॉइस क्रिएट करना है, ठीक है, ये कैसे भेजना है, मेल ट्रिगर क्या रहेगा, ठीक है, डेटाबेस में क्या 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 एंट्री हो रही है, टेबल कैसे बनाना है, ये तो कहीं ना कहीं बीए का ही रोल है ना, यस सर। है ना। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस अगर आपने समझ लिया, मतलब प्रोसेस को आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, तो इजीली किसी भी डोमेन में आप चले जाओ, इजीली आप अपने आप को उसमें सुटेबल बैठा सकते हो। तो मतलब प्रोसेस को समझना मोस्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट। ट्रांसफरेबल कर सकते हैं हम उसमें। एग्जैक्टली, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत इजी है ये, सच में बहुत इजी है। अगर आप अपने स्किल्स पे अडिग हो, आप अपने स्किल्स पे बेटर हो, आप अपने स्किल्स पे बहुत अच्छे हो, तो आई कैन वेट यू कि आप इजीली किसी भी डोमेन में चले जाओ, इजीली मैनेज कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, लर्निंग अ डोमेन कोई भी, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है आज के टाइम में बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड कि कोई बंदा हर फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो। हाँ, किसी डोमेन में एक्सपर्ट हो सकता है, बट अगर उसी बंदे को, अगर 25 साल में काम किया ना किसी बंदे ने, अगर हेल्थ केयर में, अगर उसको किसी और डोमेन में डाल तो उसको पता नहीं होगा, बट वो प्रोसेस को समझ सकता है ना। यस। तो बैक ऑफ द माइंड हमें ये लेके चलना है कि हमारा प्रोसेस हमें समझना है, प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाना है। एक प्रोसेस फ्लो चार्ट का अपना रहता है, आपको आई थिंक काफी लोगों ने बनाया भी होगा। जब आप हाँ। प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाते हो कि क्या क्या एंट्री है, जब यूज केस डायग्राम बनाते हो कि यूज केस डायग्राम में क्या क्या एक्टर्स है, तो इजीली आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद एट द एंड तो आपको वही करना होगा ना, या तो यूज स्टोरी लिखनी होगी अगर हम अजाइल स्क्रम पे हैं तो, या तो एफआरडी बनाना होगा, या तो बीआरडी बनाना होगा, यही काम करना होगा ना एट द एंड, प्रोसेस समझने के बाद से, राइट। यस चाहे आप किसी भी डोमेन में हो, तो एक्चुअली यही रहता है। क्या आपको क्लियर हुआ आपके क्वेश्चंस के आंसर? सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। राइट, पूछिए। तो अभी कंसिडर मेरा अभी साइबर सिक्योरिटी में है, हम्म, और मैं अगर नेक्स्ट कंपनी में अभी रेज्यूमे, तो कैसा प्रिपेयर करूँ फिर? मतलब देखो कौन से प्रोजेक्ट ऐड करने चाहिए मुझको? पहले तो मैं एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट के अंदर कि हमें रिज्यूमे में मतलब हमें मैंडेटरी है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट है वो डालने हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता संकेत, ठीक है। हम्म। कि आपको अपने एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि इस डिपेंड अपन कंपनी टू कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके कितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल लेवल पे होते हैं, राइट। यस। तो वो आपको एज ए दिखाना वो थोड़ा सही नहीं रहता है। तो हम्म। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, और सामने वाले जो कंपनी होती है ना, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि आप जिस कंपनी में काम करो उनके प्रोजेक्ट आप हमसे दिखा रहे हो, उनके क्लाइंट्स कौन है दिखा रहे हो, तो वो सामने वाले कंपनी को भी कई बार अच्छा नहीं लगता है। और कई बार आपके जो करंट एम्प्लॉई है, उनको, एम्प्लॉयर है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश ये करो कि आप प्रोजेक्ट भले ही एक्सप्लेन कर दो, बट कहीं लिखित में मत डालो उसको, कहीं रिटर्न में मत डालो, राइट। एंड अ पार्ट ऑफ दिस, रही बात आपकी जो आपने प्रोजेक्ट पे काम किया उसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो बट आप बताओ ना जिस टूल पे आप काम करते हो, राइट। आप जिस साइबर सिक्योरिटी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे काम करते होगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते होगे, आई थिंक कार्ड का एक्सेस का भी आप लोगों का रहता होगा, जो कार्ड एक्सेस का रहता है। क्रेडिट कार्ड एनहांसमेंट प्रोसेस वगैरह ऐसा। राइट, हाँ हाँ, वो भी रहता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो फीचर तो डाल सकते हो, अपनी स्किल्स में तो डाल सकते हो ना ये। हाँ आप, सर। हाँ, कीवर्ड ऐड करो इसके अंदर, रिज्यूमे के अंदर कीवर्ड्स ऐड करो, कीवर्ड ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिज्यूमे के अंदर कीवर्ड्स ऐड करो। आप अपने Naukri.com के अंदर अंदर ये कीवर्ड्स ऐड करो कि आप साइबर सिक्योरिटी में बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रहे हो, ठीक है, आपने ये काम किया हुआ है, आप इस टूल पे काम किए हुए हैं। देखो कोई ना कोई यहाँ पे कंपनी का भी तो कंपटीटर होगा, यस।
मल्टीपल कंपनी होंगी। टीसीएस के पास यार कितनी साइबर सिक्योरिटी के कितनी सारे प्रोजेक्ट हैं। आपको नेक्स्ट बहुत मल्टीपल कंपनियां हैं, मतलब हाँ सर। इन्फोसिस के अलावा आपको एसेंचर के पास मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट हैं। कितनी सारी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप है जो 10 साल 12 साल हुए जो काम कर रहे हैं इस साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स पे। तो दे कैन हायर यू, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। आप अपने स्किल्स को दिखाओ, उसमें डालो कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इस टूल पे काम कर रहा हूँ, मैं इस आपको इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। तो कीवर्ड्स मैच जब करता है तो कॉल्स आती हैं, राइट। यस सर। राइट ना। तो हाँ, जब वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, वहां पे आप ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट ये कंपलसरी नहीं है कि ये हमें प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना ही करना है रिज्यूमे के अंदर। हम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं मोस्टली, वो अप टू यू होता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट हमें खुद से ही नहीं करना पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन। हमें अपने स्किल्स को डालने हैं कि क्या क्या हमें स्किल्स आता है, किस किस टूल पे हमने काम किया हुआ है, हमारा मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कौन कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, यूजर स्टोरी बनाते हैं, एफआरडी बनाते हैं, बीआरडी बनाते हैं, ये सब चीजों पे फोकस करना है, राइट। कोर स्किल पे मतलब। एग्जैक्टली, कोर स्किल्स पे। अब सपोज मान लो कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं एक बीए को ढूंढ रहा हूँ, मैं एक रिक्रूटर हूँ, राइट। अब मैं एक रिक्रूटर हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक बीए चाहिए जिसको बीआरडी बनाने आता हो, एफआरडी बनाने आता हो, यूज केस बनाने आता हो, राइट ना। आपको यूज स्टोरी लिखना आता हो, मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है। और मेरे पास सीआरएम सॉफ्टवेयर है। मैं ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल ओपन सोर्स लाइक दैट क्लोज सोर्स ओपन सोर्स सास बेस्ड जैसे सेल्सफोर्स हो गया आपका, जो हो गया, ऐसे ऐसे 5-6 ऐसे मेरे पास हैं जो डेवलपर मेरे पास बैठे हुए। बट मुझे एक बीए चाहिए जो ये सब काम करता हो, राइट। तो यस। अगर मैं अपने स्किल से रिलेटेड कुछ भी सर्च करूंगा naukri.com पे या फिर रिज्यूमे देखूंगा, तो अगर आपकी ये स्किल्स मिलेंगे ऑब्वियसली मैं कॉल करूंगा, आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करूंगा, यस, राइट। मतलब कोर स्किल ही इम्पोर्टेंट है हाँ, ज्यादा। कोर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स मैच डोमेन करने चाहिए। ट्रांसफरेबल स्किल्स रहते हुए। एग्जैक्टली अगर मैं रिक्रूटर हूँ ना, तो मैं ये सर्च नहीं करता हूँ कि मतलब मुझे बीए चाहिए। मोस्टली आज के टाइम में क्या करते हैं ना रिक्रूटर लोग, कि वो स्किल्स से सर्च करते हैं कि क्या क्या स्किल्स मुझे चाहिए। जैसे हाँ। मुझे अगर कोई एफआरडी बनाना रहा हो तो वो चाहिए, अगर साइबर सिक्योरिटी में कोई बीए हो तो मैं वो सर्च करूंगा, है ना। अगर ई कॉमर्स डोमेन में कोई स्पेसिफिक बीए हो तो मैं वैसा कीवर्ड ऐड करूंगा। तो ये कीवर्ड ऐड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे और naukri.com पे। तो आपके जो कॉल रिसीव हो ज्यादा आते हैं, हम्म। सर राइट। मुझे मतलब 2-3 लोगों ने कंफ्यूज किया था ना, इसलिए मैंने ये पूछा, क्योंकि कोई वो बात बोल रहे थे कि ये ऐड करो वो ऐड करो ऐसा, इसलिए। कोई अब बात नहीं। हाँ, अच्छा हो सर, मेरा डाउट आज क्लियर हो गया पूरा। क्लियर हो गया ना, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, संकेत। यस, ठीक एब्सोल्युटली, है। थैंक यू शैलेंद्र एंड सर आज। राइट राइट। तो संकेत, द थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क ऑन, फोकसली वर्क ऑन आवर स्किल्स। बीए का अगर हमारा स्किल्स अच्छा है ना, तो लिटरली आई बेट यू कि अगर आप इंटरव्यू अच्छे से देते हो ना, तो लिटरली आई बेट यू, चाहे डोमेन कोई भी हो, अगर आपको डोमेन इतना कॉन्फिडेंस आता भी नहीं हो ना, तो आप इजिली लर्न कर लोगे विद इन 3 मंथ, है ना। यस। इतना प्रोसेस नहीं होता है आईटी स्किल्स में। एज ए बीए आपको काम वही करना होता है, बस यस। प्रोसेस अलग अलग होते हैं। प्रोसेस समझने की थोड़ी सी देरी होती है, कोई जल्दी समझ जाता है, किसी को टाइम लगता है, बट जल्दी सीख लेते हैं, राइट। यस सर। आर यू फाइन नाउ? यस। ओके, डू हैव एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन। या प्लीज। सर कभी कभी मतलब जो केस स्टडीज हमको पूछते वो कैसे टैकल करनी चाहिए हमको, मतलब आपके एक्सपीरियंस क्या है? देखो, केस स्टडी का कैसे रहता है ना कि इंटरव्यू, देखो केस स्टडी मल्टीपल चीजों पे होती है। एक केस स्टडी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनियां केस स्टडी देती क्यों है। हम्म। केस स्टडी देने का सबसे प्रॉब्लम बड़ा, सॉल्विंग स्किल देखते हैं हमारी, मतलब कैसे। हाँ, केस स्टडी देने का सबसे बड़ा, किसी भी कंपनी को, बिजनेस एनालिस्ट को एनालिसिस करना होता है कि उनको कितना आता है। केस हम्म। स्टडी में आप कभी भी देखना कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मोस्टली आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस उसमें मोस्टली रहते हैं। या तो वो बीआरडी बनाने को दे देंगे, या तो एसआर से बनाने को दे देंगे। केस आपको बनाने को दे देते हैं कि ये केस है, आप इस पे आप मतलब एक केस बना के, आप सिनेरियो बना के दे देते हैं कि आप इसको इस पे एसआरएस लिखना है, या फिर एफआरडी लिखना है, या बीआरडी लिखना है, वार फ्रेम करनी है, या फिर प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाना है। ऐसा कुछ पूरा एक केस बना के दे देती है। वो हम्म। आपको एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपको आता कितना है, आपका अप्रोच देखती है कि आपने सॉल्व कैसे किया है। लॉजिक उनका ये रहता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखो, मैं अपने करंट कंपनी में मल्टीपल इंटरव्यू लेता भी हूँ, ठीक है। तो हम भी जब केस स्टडी किसी को देते हैं ना, तो हमारा बस फंडा यही रहता है कि उसको आता कैसे है, कैसे कर पा रहा है, अप्रोच कितना है, हम उसको एनालिसिस करना चाहते हैं। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अभी के टाइम में क्या है कि बहुत सारे ऐसे मल्टीपल लोग हैं कि जिनको बीए की कुछ नहीं आता, बट वो दिखाते हैं कि मुझे ये सब कुछ आता है, राइट ना। सब कुछ आता है, बट जब एक्चुअली उनसे जब हम अगर हायर कर लेते हैं तो पता चलता है कि उनको कुछ आता ही नहीं है। तो वहां पे फिर कंपनी को लॉस होता है। इसलिए मैं हमेशा हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आप अपना फेक एक्सपीरियंस दिखा भी रहे हो ना,
बट स्किल्स आपके पास टाइम है यार, आप अगर फेक स्किल दिखा रहे हो तो काम अपने स्किल्स पे इतना कर लो ना, इतना कर लो कि अगर आप फेक भी दिखा रहे हो, आपको आता सब कुछ है, तो कंपनी को कोई मतलब नहीं है उससे, बस कंपनी को काम चाहिए। सर, है आप ना? लोगों का वैसा ही एक इंसिडेंट हमारे भी कंपनी में हुआ था। मतलब वो गाय सीसीबीए सर्टिफाइड था और हम्म। उससे मतलब कुछ भी नहीं आता था, तो वो बाद में मैनेजर को डांट रहे थे। होता है मोस्टली होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ना यार, आप अपने स्किल्स पे काम करो। मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल आपके पास इतने सारे सोर्सेज पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे कितनी सारी चीजें हैं, लिंक्डइन पे कितने सारे लोग पोस्ट करते हैं, वहां पे जाओ, देखो, हेल्प लो यार, पढ़ो उसको, मेहनत करो। आप एक बार स्किल सीख जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको कोई भी मतलब ले ऑफ भी नहीं कर सकता जल्दी। है ना? यस। प्रोसेस कोई भी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, सिंपल मैं बोलता हूँ, अगर आपने अपना 100% दिया है ना तो इजिली आप मतलब कर सकते हो। राइट? तो ये एनालिसिस करने के लिए होता है। तो जब जब हम केस स्टडी देते हैं तो हमें हमें जब रिटर्न आता है ना केस स्टडी सॉल्व करके, तो अगर हमें लगता है कि उनकी अप्रोचेस सही हैं, मतलब देखो, केस स्टडी का जो आंसर होता है ना, केस स्टडी का जो मतलब, मैं सिंपल तरीके से बोलूँ, वो कोई उसका हम ये नहीं बोल सकते करेक्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। केस स्टडी को आपने सॉल्व कैसे किया है, अप्रोच क्या क्या लगाया है, वो मैटर करता है। राइट? आपने उसको समझा कैसे, आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है। जैसे कि अगर मैंने आपसे ये बोल दिया, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, फ्लिपकार्ट का एक मैं आपको केस स्टडी दिया कि आप इस पे एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बना दो। है ना? यस। विद हेल्प ऑफ डॉट डॉट आईओ या फिर कोई भी टूल आपके पास हो एक्स्ट्रा, कोई भी जिससे आप बनाते हो, उससे आप एक प्रोसेस चार्ट बना के मुझे दो। तो मेरी एक केस स्टडी मैंने आपसे पूछा, राइट? तो आप उस पे क्या करोगे? इसमें कोई भी वो मुझे आंसर कर सकता है, कव्यांश, अंकुर, शैलेंद्र, कोई भी आंसर कर सकता है कि अगर मैंने एक केस स्टडी आपको दिया कि मुझे ई कॉमर्स डोमेन है, ठीक है, प्रोसेस है, सपोज मान लो मैं आपका स्टेक होल्डर हूँ, ठीक है, और मैं आपके पास आया, आप सारे लोग, कव्यांश भी यहाँ पे बीए है, अंकुर भी बीए है, शैलेंद्र भी बीए है, और आप भी संकेत बीए हो। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि प्लीज आप मुझे ये बताओ कि ई कॉमर्स का मुझे एक वेबसाइट चाहिए, आप मुझे एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बना दो कि जैसे मैं पहले बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मतलब एक मैं चाहता हूँ कि अमेजन जैसा मैंने वेबसाइट बनाना है मुझे, ठीक है, जहाँ पे मैं मल्टीपल सेलर को इनवाइट कर सकता हूँ, मल्टीपल कस्टमर भी आके उस पर परचेज कर सकते हैं, मतलब कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो स्टेक होल्डर होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, तो बातें वो ऐसे ही करते हैं, अपनी हाँ। रिक्वायरमेंट बताएंगे बस वो सिंपल, ऐसे बोलेंगे कि मैं मतलब मेरे सेलर चाहे तो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, है ना, अपने सेलर चाहे तो अपने प्राइस को लिस्ट कर सकते हैं। तो आप उसका एक प्रोसेस फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, वो मुझे बताओ, कोई भी बताओ, किसी के भी माइंड में हो, कुछ भी आता हो पहले बताओ। पहले हाँ। हम उसके स्टेप्स लिखेंगे, जैसे वो लॉगिन करेगा एडमिन। अगर जैसे एडमिन पोर्टल पे आता है तो वो उसको कनेक्ट करके चीजें देख सकता है, उसको हम्म। प्रोडक्ट्स दिखेंगे। उसका हम एक प्रॉपर यूजर फ्लो बनाएंगे कि अगर यूजर कुछ एक्सेस कर रहा है तो वो किस वे में करेगा, एडमिन कर रहा है तो उसके पास कौन से राइट्स रहेंगे, वो हम्म। यूजर्स की एक्टिविटी देख सकता है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देख सकता है, और वो उस हिसाब से हम स्टेप डिफाइन करके उसके बाद हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ठीक है, उसमें भी प्रोसेस में हम वो बनाते हैं ना कि प्रोसेस हमारा क्या क्या है, उसके बाद हमारा हम्म। डिसीजन डिसीजन क्या क्या रहता है, क्या डिसीजन लेने के बाद से क्या जा रहा हम्म। है, जो डिसीजन डायमंड बॉक्स हम करेक्ट करेक्ट, बनाते हैं। यस और नो वाला। राइट, हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा कि लॉग इन करेगा या साइन अप करेगा, वो पहला हमारा प्रोसेस ये हो गया। दूसरे प्रोसेस पे क्या करेगा कि वो आप एज ए कस्टमर, मैं सबकी बता रहा हूँ, उसके बाद तो वो जाएगा, प्रोडक्ट स्क्रॉल करेगा, सर्च करेगा तो कैटेगरी पे जाएगा, तो दूसरा प्रोसेस ये हो गया। फिर वो ऐड टू कार्ट करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा मुझे परचेज करना है या नहीं करना है, वो सारी प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद से, डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद से, फिर हमारा एक डायमंड स्क्वायर वाला जो रहता है डिसीजन बॉक्स हमारा, हाँ। वो चूज करेगा, तो करेक्ट। फिर वहां से यस नो निकलेगा। तो ऐसे एक प्रोसेस बनाते हैं। तो अगर जो बंदे को अगर हम ये केस देते हैं ना, अगर वो ऐसे सॉल्व करके दिखा देता है, अब देखो इसमें फंक्शनैलिटी कुछ भी हो सकती है, बट उसका जो अप्रोच है ना वो अगर सही है, तो हमें लगता है कि बंदे को आता है। देखो यार, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, बट उसकी अप्रोचेज अगर अच्छी हैं, अगर वो अप्रोच अच्छा कर रहा है, मतलब जो एल्गोरिदम वो अपना रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, अगर वो अच्छा है, तो यार कोई भी कंपनी हायर कर लेती है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि मतलब हम जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमें मतलब हमारा जो प्रोसेस उसको आता हो, हमारे पास आने के बाद भी 2 3 4 महीने में सीख सकता है, बट एटलीस्ट जो बीए की स्किल्स हैं, जिस पोजीशन के लिए हम हायर कर रहे हैं, वो उसको आता है या नहीं, वो मैटर करता है। यस। राइट? मेरे को एक चीज और पूछनी थी इसमें। जैसे बताइए। हम जब हमारे पास कोई केस स्टडी आती है, हम्म। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी, रफ रिक्वायरमेंट दी कि मेरे को सीआरएम भी चाहिए, एचआरएमएस भी चाहिए सारा। अब आप उसकी एक कॉस्टिंग निकाल के प्रपोजल प्रिपेयर कर दो,
तो उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? लाइक प्रपोजल का जो फॉर्मेट होता है वो तो उस हिसाब से रहेगा ही कि हम स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर रहे हैं, या उसने सिर्फ सीधा ये बोल दिया, उसे कुछ नॉलेज नहीं है सीआरएम एचआरएमएस में क्या होता है, उसने हमें कोई फीचर लिस्ट प्रोवाइड करी कि मेरे को ये फीचर चाहिए, सब फीचर चाहिए, तो उसके लिए अप्रोच क्या होती है, हम कैसे उसे टैकल कर सकते हैं एज अ बीए? ये आप केस स्टडी की बात कर रहे हो या रियल लाइफ की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, केस स्टडी की बात कर रहे थे, कोई राइट केस स्टडी राइट, आती ठीक है, है। वो हाँ, कह रहा है कि ये हम ये एक मॉडल। ये इंटरव्यूअर जब पूछता है आपसे या केस स्टडी देता है आपको, राइट, कॉस्टिंग के लिए। नहीं 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 नहीं, ये जब हाँ क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट देता है, फॉर हाँ। एग्जांपल कि मेरे को एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बनवाना है और एचआरएमएस इम्प्लीमेंट करवाना है, हम्म उसे नहीं पता, उसे बस इतना पता है क्लाइंट को अपने एंड से कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, वो हम्म मेरी आधी से ज्यादा वर्कलोड कम कर देगा और मेरी नीड सेटिस्फाई कर देगा, राइट? हम्म अब एज अ बीए हमारे पास वो आती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कि ये इम्प्लीमेंट करवाना है, तो हम्म उसको हम क्या फीचर सब फीचर दें और कॉस्टिंग वगैरह प्रपोजल वगैरह किस बेसिस पे डिफाइन करें कि मतलब कि वो जस्टिफाइड भी लगे और वो ओवरकम भी हो जाए उसके, वो सारी चीजें, वो देखो, मैं पूछ रहा हूँ। ये फिक्स होता है, ये मतलब ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये क्या होता है, कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वरी करता है। बट द थिंग इज दैट कि सपोज मान लो आपके पास क्लाइंट भी उस लेवल पे आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सपोज मान लो आप XYZ कंपनी के साथ एज ए BA ज्वाइन किया आपने, ठीक है। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि कंपनी की, जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आउट ऑफ द हम्म मतलब आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आते। अगर वो ERP और CRM के अंदर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली कस्टमर उसी से रिलेटेड आएगा, वो हेल्थ केयर हम्म। वाले से रिलेटेड नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास लीड्स भी जो आने की चांसेस होते हैं वही होते हैं मोस्टली, है ना। करेक्ट। तो मोबाइल ऐप डेवलप के लिए नहीं है। अगर आप ERP बेस्ड कंपनी हो, ERP एक्सपर्ट कंपनी हो, तो ऑब्वियसली कस्टमर ERP से रिलेटेड आता है। और जैसे आपने जो क्वेश्चन किया कि कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे HR भी मैनेज करना है, सेल्स भी मैनेज करना है, फाइनेंस भी मैनेज करना है, हम्म। सारी चीजें मैनेज करनी है, उसको सच में कुछ पता नहीं रहता मोस्टली केस में। 80 हाँ, आपको 98% केसेस में उनको नहीं पता होता कि क्या कॉस्टिंग होता है, नहीं क्या पता फीचर रहता। होता है, राइट। हाँ। बट बीइंग अ बीए ये तो आपको हम्म पता है ना, क्योंकि आप जिस प्रोसेस में काम कर रहे हो, सपोज मान लो कि आप एक ERP, या तो मैं एक उडू ERP की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं SAP की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं आपको ओरेकल की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोडक्ट के अंदर हो, उस कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हो, तो आपको तो ये पता होती है ना जनरल चीजें, जो एक्सप्लोर आप करते हो कि अच्छा सेल्स का ये मॉड्यूल रहता है, ये उसमें ये फीचर रहता है, ठीक है। आपको अगर परचेज का है बंदा तो परचेज में PO ऐसे रिलीज कर सकता है, अगर उसको इनवॉइसिंग करनी है तो इनवॉइसिंग ऐसे हो जाएगा, फिर वो जनरल लेजर में कैसे हिट करेगा, सारी चीजें आपको तो ये फंक्शनैलिटी इंटरनली पता होती है ना। तभी सर मैंने इंटरप्टिंग, सर वन ऑफ द थिंग इंटरप्टिंग, सर तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा डोमेन है आपका। एग्जैक्टली, डोमेन डोमेन इसमें एग्जैक्ट मैच करता है, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई कंपनी, जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले जब भी हम BA ज्वाइन करते हैं तो उनका जो भी प्रोसेस होता है, उनकी जो भी इंटरनल प्रोडक्ट होती है, वो लोग उस पर 1 से 1.5 महीने आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसको बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फ्लो रहता है हमारा, है ना, क्या क्या हम फीचर दे सकते हैं। एडमिन, एज एडमिन आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर एज ए कस्टमर हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो सारी चीजें इंटरनली बताई जाती हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग जब आपको उस प्रोजेक्ट के लिए भेजा जाए, ऐसा नहीं होता कि आपने आज ज्वाइन किया, कल ही वो एज ए BA के लिए आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए भेज देते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले वो एनालिसिस करते हैं कि आपको नॉलेज कितना है। आपको BA का तो स्किल्स आता है, आपको ये तो पता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करनी है। यहाँ पे भी देखो, लॉजिक को समझो, एक BA की स्किल्स होना, एक प्रोसेस नॉलेज थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो प्रोसेस नॉलेज है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जो डोमेन नॉलेज है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट BA के स्किल में तो आप तो प्रोफिशिएंट हो ना, आपको तो पता है कि BA की स्किल्स कैसी है, वो आपको आता है। बट किसी भी कंपनी को जब आप एज ए BA ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं पता कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर है। अगर मैं ERP की बात करूँ तो अब उडू ERP का काम करने की फंक्शनलिटी बिल्कुल अलग है ना। SAP का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, बट है दोनों ERP, है ना। उसकी फंक्शनलिटी अलग होगी, इसकी हम्म। फंक्शनलिटी अलग होगी, राइट ना। अगर कोई इंटरनली ERP है जो उन्होंने खुद के लिए इंटरनल अपनी कंपनी के लिए बनवा रखा है, उसका काम करने का तरीका अलग होगा, राइट। तो एटलीस्ट उसको समझना तो पड़ेगा ना, है ना। आपको टाइम दिया जाता है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप समझो इस सॉफ्टवेयर को, समझो। किसी को आपको KT के लिए लगा दिया जाता है, तो आपको बंदा KT भी देता है कि अच्छा यहाँ से हम PO रिलीज कर सकते हैं, यहाँ से हम इनवॉइसिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम आपको जनरल लेजर में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से हम इंटीग्रेशन ऐसे हमारा है इसके अंदर, ऐसे हमारा बैकएंड चलता है। अगर और बैकएंड में जाए तो आपको डेटाबेस भी दिखाते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें हमारी डेटाबेस टेबल के अंदर सेव होती हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारी प्रोसेस रहता है। तो आप जब 1 1.5 महीने जब धीरे धीरे काम करते हो ना, जब अपने सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप जो आपका जो भी प्रोडक्ट होता है, आप उस सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड कर ले तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि हम कितने कॉस्टिंग में करवा सकते हैं,
ठीक है, उस पीरियड में आप अपने जो भी आपके सीनियर होते हैं, प्रोडक्ट ओनर होते हैं या फिर जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उससे आप डिस्कस भी कर लेते हो कॉस्टिंग से रिलेटेड, या फिर आप अपने डेवलपमेंट टीम की जो लीड होती है वो आपको एफर्ट बताते हैं कि जी इतना एफर्ट लगेगा। जैसे कब्यांश आपने क्वेश्चन किया कि आपको अब आइडिया कैसे लगेगा, उन्होंने फीचर दिया तो राइट। अब फीचर कितना फीजिबल है, फीचर में कितना एफर्ट लग रहा है, ये तो आपको डेवलपर बताएगा ना, या जो उनकी लीड होंगे वो बताएंगे, करेक्ट। राइट। तो आप बट वही उनसे है ना, क्लाइंट समझता नहीं है। क्लाइंट को लगता है कि ये वाला फीचर कि इजीली डेवलप हो जाएगा, और उन्हें नहीं पता कि उसके पीछे कितना कॉस्ट जाता है, कितना एफर्ट जाता है, कोडिंग का पूरा कोड लिखना पड़ता है। तो वो एक मेजर पार्ट आ जाता है एज अ बीए हैंडल करना, कि जैसे डेवलपर ने बोला कि ये 2 दिन में एक फीचर डेवलप होगा, राइट, और उसकी कॉस्टिंग उस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल 20,000 बनी। अब वो जो क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं 10,000 ही पे करूंगा, ये छोटा सा फीचर है, तो वो वाला एक मेजर पार्ट आ जाता है कि कन्विंस कैसे करें। देखो यार, वो कन्वेंसिंग तो मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो हर किसी का अपना रहता है, बट वहां पे जो टर्म्स है तो टर्म्स है। अब ऐसा नहीं है कि देखो अब आपके कॉस्ट है, आपकी चीजें हैं, बट उसमें भी एज पर द कंपनी डिपेंड करता है। आपके अगर वो स्टेक होल्डर बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से आपके साथ एसोसिएट है, तो उस टाइम पे कुछ हम वे ऑफ कर देते हैं, राइट। या फिर ऐसा हम करते हैं उस पीरियड में कि उस क्लाइंट से हम अपना रिलेशन अच्छा मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत हमें वो यार मतलब वे ऑफ देना पड़ता है। अगर क्लाइंट नया हाँ। है, अगर अगर सच में अगर लग रहा है कि नहीं हमें मतलब पॉसिबल नहीं है, डेवलपर को बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा इसमें, है ना, तो वहां पे हम सीधा कट टू कट बात करते हैं कि सर वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो वो चीजें हैं, जो है करेक्ट। सो है, जो है सो क्लियर एज ए बीए। अगर आप ज्वाइन करते हो तो यार देखो यार, कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है आप क्लियर कट बताओ उनको, ताकि बाद में कोई फंसो नहीं, क्योंकि कल को अगर कुछ भी होता है कॉस्टिंग से रिलेटेड, या फिर आपने कॉस्टिंग थोड़ा कम ले लिया, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया, आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए, ठीक है, और उतना पैसा आया नहीं, तो कंपनी को अपना फंड भी मैनेज करना होता है, पूरी प्रोजेक्ट एसोसिएटेड रहती है। आप जब जॉब करो तो आपकी सैलरी से लेकर हर चीज पार्ट उसमें एसोसिएटेड रहता है, करेक्ट। राइट। तो वो चीजें बाद में आपके ऊपर ही आ जाती हैं। तो जो है क्लियर कम्युनिकेशन बीइंग अ बीए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप अपने स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर वो ये बोल रहा है कि नहीं 10,000 में ये हो सकता है, तो आप उनको सिंपली क्लियर कर दो। अगर आप अपने डिस्कस कर लो, आपने जो भी आपके क्यूए हैं, सॉरी आपके जो मैनेजर हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या फिर प्रोडक्ट ओनर हैं या फिर जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर, उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो। अगर अगर फीजिबल है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हो, तो आप उस टाइम पे आप दे सकते हो, उनसे क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दो कि हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हो तो क्लियरली आप उनको रिटर्न में बोल दो कि सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगेगा, और जहाँ पे एफर्ट लगता है वहां पे पैसा लेना जेन्युइन होता है, हाँ, करेक्ट। राइट। तो ट्रांसपेरेंटली बहुत जरूरी है। मतलब आपने ऐसा नहीं बोला कि आपने उस टाइम बोल दिया प्रोजेक्ट लेने के लिए कि हाँ हम कर देंगे कर देंगे, बाद में क्लाइंट को ये बोला कि नहीं हम नहीं और कर बाद में पाएंगे, हुआ नहीं। हाँ, तो बाद में वो क्लाइंट भी भड़कता है, आपका रिलेशन भी खराब होता है। तो इससे पहले क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में रिटर्न भी और साइन अप भी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम्म, बीइंग अ बीए। हम्म। राइट, क्लियर हुआ आपको कवियंस, आपके क्वेश्चंस के आंसर? हाँ, जब हम साइन ऑफ लेते हैं तो वो हम बीआरडी से ही ले सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसका सी साइन ऑफ, ये या फिर जब इसका हम कोई स्टार्टिंग में इसका लेते हैं? हाँ 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 गॉट इट। इसका हाँ। ना कवियांश फिक्स नहीं है कि मतलब हम साइन अप हमें बीआरडी पे ही लेना है। वो डिपेंड करता है अच्छा। कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि आपने वो सुना होगा आरएफक्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रोसेस हाँ, होता है, कोटेशन का हाँ, प्रोसेस होता हाँ। है ना, जहाँ पे बिडिंग वाला हम्म। सिस्टम होता है, हम प्रोजेक्ट जब लेने जाते हैं, ठीक हाँ। है, तो हम्म। वहां भी कुछ सीन होता है। प्लस उसके साथ ही साथ अगर मेट्रोलॉजी टू मेट्रोलॉजी डिपेंड करती है। अब आपने बोला बीआरडी के लिए, बीआरडी साइन अप के लिए, तो अगर हम वाटरफॉल पे हैं तो ऑब्वियसली हम बीआरडी बनाएंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद से उस पर क्लाइंट का हम साइन अप लेते हैं, ठीक है। बट हाँ। अगर सपोज मान लो कि आपकी कोई इंटरनल ऐसे कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है जो आप सपोज मान लो XYZ कंपनी में चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट टाइप के एक डॉक्यूमेंट बनते हैं जहाँ पे क्या क्या फीचर हम क्लाइंट को देंगे, ठीक है, और क्या क्या क्लाइंट पे कर रहा है हमें, पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना के क्लाइंट को हम देते हैं, उस पर क्लाइंट साइन अप करता है। तो एक वो भी हम्म। डॉक्यूमेंट्स होता है, वो फिक्स नहीं होता है। मतलब देखो जो नॉर्म्स है वो तो यही कहते हैं कि जो देयर इज आपने नो भी सच फॉर्मेट फॉर दैट। हाँ, जो फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है, बट हाँ एक फॉर्मेट फिक्स अच्छा। है कि अगर आप वाटरफॉल फॉलो कर रहे हो, अगर बीआरडी आप बना रहे हो, हम्म। अगर कोई भी काम स्टार्ट करने हम्म। से पहले, ये फिक्स है, कोई भी काम हम्म। अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले किसी भी तरह का जो भी हम्म। आपने रिक्वायरमेंट को समझा है, पहले उसको आपको हम्म। स्टेक होल्डर से वैलिडेट कराना है कि जो आपने बताई है हमने उसको सही कैप्चर किया हम्म। है या नहीं, ठीक है। उसको ठीक वैलिडेट है। कराने के लिए आपको किसी भी वे ऑफ फॉर्मेट में आपको साइन अप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनसे अप्रूवल लेना बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होता है। बिना अप्रूवल लिए, बिना साइन अप लिए हम किसी भी अपने प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते। ठीक है। रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को एग्जांपल में देता हूँ, सपोज मान लो अंकुर आपके स्टेक वन होल्डर है। 1 minute, just एक क्वेश्चन है सर।
बताइए। जो आपने अभी ये बताया कि साइन ऑफ में मतलब रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर ये भाया मेल कम्युनिकेशन भी हो सकता है क्या? जस्ट अ सिली एग्जैक्टली, क्वेश्चन। एग्जैक्टली। सिली क्वेश्चन इट इज, बट स्टिल आई एम आस्किंग सर। नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट सिली क्वेश्चन अंकुर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर मेल पे भी नहीं नहीं, अप्रूवल दे सिली देते क्वेश्चन हो। तो नहीं है, मेरा भी सेम क्वेश्चन था ये। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन सिली नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग करते हैं। मेल पे भी, अगर मेल पे भी क्लाइंट ने लिख के दे दिया अप्रूव्ड है, ओके है, तो हम उस पे भी मूव ऑन कर जाते हैं, उस पे भी हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो साइन मीन्स अप लाइक ले, सर चलेगा। हाँ चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ। अब सपोज मान लो कि आपने एक छोटी सी कस्टमाइजेशन है, आप सपोज मान लो कि एक ईआरपी प्रोजेक्ट पे हो। अब क्लाइंट को ऐसा हम्म। चाहिए कि वो जब कुछ जीआरएन होता है, गेट एंट्री होती है ईआरपी हाँ में, हाँ जब बड़े बड़े, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको पता हो गेट एंट्री होती हाँ है, सर, जब हाँ रॉ सर, हाँ मटेरियल सर। परचेज होके आता है, तो है ना। यस सर, तो यस अब सर। सपोज मान लो कि गेट एंट्री जब हम ले रहे हैं, तो आपके ईआरपी सिस्टम में ना अपलोड का कोई फीचर नहीं है, मतलब फोटो खींच के ना वो ट्रक का फोटो अपलोड नहीं कर सकता है, राइट। आपका हम्म। इंटरनल ईआरपी है, तो वो एक कस्टमाइजेशन चाहिए। वो आप बीइंग आप एक जिस भी आईटी कंपनी में आप हो, आपको बताएगा कि आप जाओ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए गए, ठीक है। अब आप छोटी सी कस्टमाइजेशन आप ले रहे हो कि भैया उनको एक अपलोड का फीचर चाहिए, ताकि वो किसी भी जब गेट एंट्री ले तो उस ट्रक का जो भी नंबर प्लेट होता है उसका फोटो खींच के साथ ही साथ गेट एंट्री के दौरान वो उसकी फोटो अपलोड कर सके फोन से अपने या मोबाइल से, राइट। तो या एक छोटा सा अगर फीचर है, तो इस फीचर को आप मेल पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो कि जी ये फीचर हम आपका इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके ईआरपी के अंदर आपको इतना कॉस्ट जाएगा, इस टाइम लाइन भी आपको हम डिलीवर करेंगे, हमारे इतने एफर्ट लगेंगे। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस पे अप्रूवल दे दो मेल पे, आपने सिंपल लिख के दे दिया, उसका मेल पे रिप्लाई आ गया ओके अप्रूव्ड, तो आप उस पे जा सकते हो। ये अप्रूवल साइन अप का प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल को जो क्लाइंट से आपने कम्युनिकेट किया है, जो क्लाइंट ने आपको कम्युनिकेट किया है, जो आपने समझा है वो मैच कर रहा है, क्लाइंट ने उसको के दिया, कल को ऐसा ना हो कि आपने डेवलपमेंट कर दिया, वहां पे क्लाइंट वापस आए कि मैंने ये तो बोला ही नहीं था। वो मीन्स लाइक सर क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन का एक मीडियम हो गया सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि क्योंकि देखो यार, आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि आपने कोई चीज पहले से साइन अप नहीं लिया होगा, अगर डेवलप कर दिया आपने और क्लाइंट बाद में अगर साइन अप नहीं लिया, तो क्लाइंट मोस्टली केस में होते हैं ऐसा, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं कि जो मुझे चाहिए ही नहीं था, आपने कुछ और बना दिया, तो वहां पे आपका तो एक पूरी डेवलपमेंट टीम की मेहनत गई, पैसा गया, हम्म। है ना, और प्रोजेक्ट का फेलियर का चांसेस भी है, साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर है उनसे रिलेशन भी खराब होने लगते हैं, राइट। तो साइन अप का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ आपको ये? या कब्यांश क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चंस? हाँ। और कोई क्वेश्चन आपके लोगों के साइड से? एक क्वेश्चन था सर, जो मल्टीपल जैसे कि आपने केस स्टडीज एंड ऑल ये बताए थे, हम्म। तो सर कोई यूट्यूब पे कुछ ऐसा कुछ चैनल से सजेस्ट कर दो जो कि हम लोग हमेशा देखें। लाइक सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में हूँ सर, एंड आई जस्ट वांट टू मूव इनटू द आईटी सेक्टर। हम्म। तो उसके लिए सर बेटर क्या क्या रहेगा? कुछ केस देखो स्टडी यार, जो केस स्टडी के लिए तो मल्टीपल यूट्यूब से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है, बट एक्चुअली ये आपको नहीं बताएंगे कि सॉल्व कैसे करना है, मतलब उसमें ट्रिक यही होता है कि मैं बताता हूँ करना कैसे है किसी भी केस स्टडी को, कि आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी आपको केस स्टडी मिले, आप उसको पहले तो अच्छे से पढ़ो, उसको समझो कि केस स्टडी में पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। समझने के बाद से अगर सपोज मान लो मोस्टली जो केस स्टडी होती है, या तो वो बीआरडी एसआरएस या फिर फ्लो चार्ट या वायर फ्रेम ऐसे कुछ बनाने को वो लोग देते हैं, ठीक है। या फिर कुछ सिचुएशनल दे देंगे कि इस सिचुएशन में आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे। अब सपोज मान लो कोई कंपनी आई, अब उसने एक सिचुएशन आपको दे दिया केस स्टडी पे कि एक कंपनी आपके पास है जो न्यूयॉर्क की कंपनी है, जो 25 सालों से वो मार्केट में अपना एक ग्रोसरी आइटम अपने स्टोर चला रहे हैं, जो मल्टीपल जगह उनकी स्टोर है, बट अभी 2-4 सालों से उनकी सेल्स बहुत डाउन है ना। तो उसके हम्म। पीछे क्या क्या एनालिसिस हो सकते हो, तो बीइंग कि आप ये क्या क्या एनालिसिस करोगे, ऑब्वियसली उनके जो है सेल्स डाउन होने का रीजन ये हो सकता है कि अभी तक वो ऑफलाइन बेच रहे हैं सिर्फ, है ना, मल्टीपल लोगों तक उनकी रीच नहीं है, उनके पास कोई ऑनलाइन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में हर कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहता है, राइट। तो आप क्या क्या उसको रिकमेंड करोगे, क्या क्या सोल्यूशन रिकमेंड करोगे बीइंग अब ये, तो वो सारी चीजें एनालिसिस करना होता है आपको, अब लिख के देना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसे केस स्टडी भी होते हैं, राइट। ओके। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आई विल रिकमेंड यू कि, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है ना, जैसे आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो आप खुद से भी ना कुछ कुछ केस अपने दिमाग में लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि यार प्लीज सजेस्ट मी केस स्टडी, ठीक है, बीए केस स्टडी, तो वो बहुत सारे केस स्टडी बना के दे देगा, है ना, आपको क्वेश्चन बना के दे देगा, तो उसको ट्राई इससे करो खुद इससे से। रिलेटेड
हाँ, इससे सॉरी रिलेटेड। सॉरी, इससे रिलेटेड एक और सवाल था। जैसे चैट जीपीटी हम बीए के लिए यूज करते हैं, हम प्रॉपर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते राइट? क्योंकि प्रॉपर राइट, कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली। किया तो फिर ऐसे दिया हमारा फायदा क्या है? फायदा जो क्या है? सेकेंडली, जैसे हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत रेफरेंस हम्म एंड ऑल के लिए, हम्म कोई हम्म। अदर आप एआई टूल सजेस्ट करोगे कि जैसे वायर फ्रेम, स्विमलेन, हम इन सब की भी मतलब बना सकें? क्योंकि चैट जीपीटी प्रॉपर एक वो डेफिनेशन नहीं देता है, इट जस्ट की एक देखो, ओवरव्यू दे देगा। आप इसमें काव्यांश, आप क्लॉड एआई भी यूज कर सकते हो, वो मोर मतलब ह्यूमनाइज करके आंसर देता है। चैट जीपीटी थोड़ा रोबोटिक टाइप है, पर क्लॉड नहीं एआई जो। नहीं, मैं आंसर्स की बात नहीं कर रहा, नहीं नहीं, मैं हम्म, आंसर्स की बात नहीं कर रहा। आंसर्स के लिए तो बहुत सारे हैं, जैसे जेमिनी हो गया, हाँ और वही। भी बहुत सारे एआई टूल है जो नॉर्मल ह्यूमन एआई में लिख देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कॉन्सेप्ट का, कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप कौन से डिफरेंट एआई टूल्स यूज कर सकते हो जो कि आपको बीए का कॉन्सेप्ट, जैसे वायर से मॉकअप, ये सबको कॉन्सेप्चुलाइज करके स्ट्रीमलाइन कर दें। काव्यांश, इसके लिए मैं पता क्या आपको रिकमेंड करूंगा। देखो, जितनी भी एआई टूल है ना, वो कंटेंट हमें अच्छा दे सकती है, हमें प्रोसेस को बता सकती है लिख के, जी ये जी, प्रोसेस ये कर रहा है, बट एट द एंड आपको वायर फ्रेम हमें खुद से ड्रॉ करना होता है। इसके लिए कोई अभी तक एआई करेक्ट। टूल होंगी, बट आई विल, मतलब मैं इसके लिए बैट कर सकता हूँ कि इतनी परफेक्ट बना के नहीं दे सकते, क्योंकि जो वायर फ्रेमिंग, प्रोसेस फ्लो चार्ट, यूज केस डायग्राम, ये चीजें है ना, वो एज पर द हमारी स्किल्स डिफाइन करती है उसमें कि हमें कितना आता है। तो वो हमारी स्किल्स है कि अगर हमें परफेक्ट तरीके से हमने अगर रिक्वायरमेंट को समझा है, किसी भी प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया है, तो वो हम अच्छे तरीके से उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। हमें उसका आइडिया, चैट जीपीटी एआई टूल हमें आइडिया दे सकता है कि ड्रॉ कैसे करना है, कंटेंट क्या क्या डाल सकते हैं, बट वो हाँ ड्रॉ करके नहीं दे सकता है। ड्रॉ एट एट एंड हमें ही करना पड़ेगा खुद से। और कहीं ना कहीं हम चैट जीपीटी का हेल्प हमें लेना चाहिए, आप हेल्प लो, बट प्रोसेस को समझने के लिए। एट द एंड ड्रॉ आप खुद से करो, तभी तो आप सीखोगे ना। करेक्ट, ठीक है। राइट, ठीक है। तो ये चीजें रहता है। आपने अंकुर क्वेश्चन, आपने आई थिंक एक और क्वेश्चन किया था, क्या था आपका क्वेश्चन लास्ट वाला? केस स्टडी के लिए पूछा था सर। हाँ, केस स्टडी के लिए जो आपने पूछा था, हाँ। तो कोई भी केस स्टडी आपको जब सॉल्व करना हो ना, तो आप उसका प्रोसेस को समझो कि एक्चुअल केस स्टडी पूछ क्या रहा है। सपोज मान लो कि आप, मोस्टली लोग यही पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप एक वायर फ्रेम बना दो, ठीक है, या फिर आप एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बना दो, या फिर यूज केस बना दो, या बीआरडीएफ आरडी बना दो। मोस्टली केस में यही होते हैं केस स्टडी। एक केस आपको दे देंगे कि आप एक, सपोज मान लो आप बीए एज लिस्टेड हुए हो, एक हॉस्पिटल के लिए मोबाइल ऐप बनवाना है, तो आप उसमें क्या क्या चीजें रिकमेंड करोगे, ठीक है, क्या क्या आप एक, इसके लिए एक यूजर स्टोरी लिख दो, मुझे ये फीचर चाहिए, तो उस टाइप से रहता है। तो आपकी खुद की स्किल्स कितनी अच्छी है। अब इसमें आपको करना क्या क्या है, आपको ये पता है कि मेरे से बीआरडी बनाने के लिए पूछ सकते हैं, आपको ये पता है कि मेरे को एफआरडी बनाने के लिए पूछ सकते हैं, आपको ये पता है कि मेरे को वाईफ्रेम बनाने के लिए पूछ सकते हैं, तो क्यों ना आप इस स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो, है ना। आप अपने वायर फ्रेमिंग की स्किल्स अच्छी करो, आप यूट्यूब पे देखो, मल्टीपल वीडियो पड़ी हुई है, सबसे बेस्ट वायर फ्रेम जो बनता है फिग्मा पे बनता है, सबसे बेस्ट। बाल्समिक भी है, उस पे भी आप बना सकते हो, ड्रॉ डॉट आयो से भी आप फ्री में बना सकते हो, है ना। बट उस पे क्या होता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, बट सबसे अच्छी क्वालिटी की अगर वायर फ्रेम बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं फिग्मा पे। तो आप फिग्मा सीख लो, है ना, बाल्समिक सीख सकते हो, आप ड्रॉ डॉट आयो से सीख सकते हो, बहुत से मल्टीपल टूल्स हैं, ठीक है। तो आप, आपने वायर फ्रेम बनाने को सीख लिया, कुछ भी एटलीस्ट आप एक एक दिन वो क्या करो, आप अमेजन की वेबसाइट खोल लो, उसके जो भी कहाँ का बटन है उसको ड्रॉ करना शुरू कर दो, क्या क्या कलर डालने हैं उसको ड्रॉ करना शुरू कर दो। आप फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन कर लो, किसी मोबाइल ऐप का खोल लो, आप खुद से ड्रॉ करो ना। जब ये ड्रॉ कर लोगे तो चीजें धीरे धीरे सीखने लगते हो। वायरफ्रेम है क्या, कि एक्चुअल जो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझी है, वो होगा कैसा, आपको बस सिंपली ड्रॉ करना है। इतना कुछ कुछ एकदम हैवी तरीके से नहीं बनाना है। बस आपको ये दिखाना है कि बटन कहाँ पे रहेगा, सर्च फंक्शनलिटी कहाँ पे रहेगी, ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ पे रहेगा, सिंपल आपको बस इतना ही ड्रॉ करना होता है, ताकि जो क्लाइंट ने बोला है आपने उसको सही तरीके से समझा है, यानी उस चीज को वैलिडेट करने के लिए, इसलिए हम बनाते हैं वायरफ्रेम। एज राइट। एज पर द लेआउट कह सकते हैं सर ना। हाँ, एज पर द लेआउट, एज पर द ब्लूप्रिंट भी आप बोल सकते हो इसे। सर एग्जैक्टली। आपने वो लिंक्डइन पे भी शेयर की है केस स्टडीज, तो वो भी अंकुर आप रेफर कर सकते हो। हाँ, आप वो भी लिख सको, तो मैंने भी काफी सारी मैंने केस स्टडी शेयर की हुई है अपने लिंक्डइन पे, तो आप उसको हाँ सर, पढ़ो, हाँ सर। आइडिया मिल जाएगा। और बाकी किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए तो यार, लिंक्डइन पे वी आर कनेक्टेड, आप मेरे से पूछ सकते हो। राइट। तो उसमें या कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ और कोई क्वेश्चन, कोई वही, आंसर आप लोग के? हाँ मेरा एक वही सेम क्वेश्चन था, जैसे एफआरडी का मैंने शायद लिंक्डइन पर भी पूछा था कि एफआरडी के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है क्या? मतलब देखो जैसे कि यार, टेक्निकल डोमेन से नहीं है। देखो टेक्निकल डोमेन से आप नहीं हो, बट एफआरडी के अंदर मैं ये चीज़ रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि एफआरडी का सबसे बड़ा लॉजिक हमारा ये रहता है, एफआरडी हम अपने बनाते हैं इंटरनल टीम के लिए, डेवलपर्स के लिए और क्यूए के लिए, ठीक है। ये हमें हम्म। समझना जरूरी है कि हम बनाते क्यों हैं और किसके लिए बनाते हैं, ठीक है।
बीआरडी के अंदर हम हमेशा ठीक है। जो हाई लेवल की बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, इतना हम टेक्निकली चीजें उसमें इंडेप्थ नहीं करते हैं, वो सब बीआरडी बनाते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है। जब एफआरडी हाँ। बनाते हैं तो उसमें हम कोशिश क्या करते हैं, जैसे सबसे जो मेन पार्ट होता है एफआरडी के अंदर हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डेटाबेस क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, टेबल क्या क्या बनाएंगे। तो हम्म, सिंपल चीजें ये रहती है। अब सपोज मान लो एक एफआरडी के अंदर आप एक फीचर लिख रहे हो अपलोड सिस्टम का, है ना। अब अपलोड सिस्टम में दो चीजें हाँ। आप लेके चलोगे, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी लिखोगे आप, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आप लिखोगे, राइट। अब हम्म। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, थोड़ा सा बताओगे आप मुझे कव्यांश। तो और नॉन फंक्शनल फंक्शनल। रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बोला कि लॉगिन वाला फीचर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। लॉगिन वाला फीचर का फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो वर्क कैसे करेगा। अगर ठीक हम है। लॉगिन में जैसे क्रेडेंशियल डालते हैं तो वो लॉगिन करके डैशबोर्ड वाले पेज पे एक्सेस दे जाएगा, तो वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, इफ आई ठीक एम है। नॉट रॉन्ग। ठीक है। और फिर मैं ऐड करूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संकेत बताइए। हाँ, तो सर फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब अपना जो आप वेबसाइट है वगैरह वो कैसे लॉग इन साइन अप यूजर, हम्म। मतलब वो कैसे यूज कर सकते हैं, वो फंक्शनल हो गया। और ठीक है। वही वेबसाइट मुझे क्रोम या फायरफॉक्स और मतलब अदर ब्राउजर्स पे कैसे वर्क कर रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी, हम्म। मतलब जो परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी टाइप जो पैरामीटर्स रहते हैं वो नॉन फंक्शनल में आते हैं, और जो हम्म। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो अपन फंक्शनल में अ, मतलब रहते हैं। ठीक है, सही है सही है। तो थोड़ा बहुत और मैं एग्जैक्टली इंक्लूड सर। करूंगा। अंकुर आप थोड़ा सा ऐड करो इसमें। यस सर। जैसे कि आप लॉगिन करते हो, लॉगिन पासवर्ड जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, दैट हम्म। इज नोन एज मतलब इन इन मतलब बेसिक टर्म सर। हम्म। तो ये होगी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। हम्म। एंड नॉन फंक्शनल हम उस चीज को कहेंगे जो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मीन्स लाइक जैसे जीमेल अपन लॉगिन करते हैं, हम्म। तो कितने लोग एक टाइम में लॉगिन किए हैं, कि या क्या स्पीड चल रही है, कितना सर्वर पे लोड है, ये सब वो नॉन फंक्शनल रिकॉर्ड जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बट हम्म। हमें दिखाई दे रहा है कि हाउ मेनी मेल्स आर देयर, एंड मतलब पासवर्ड क्या है, लॉगिन लॉगिन के लिए यूजर नेम क्या रहता है, एंड ऑल कंपोज एंड आइटम्स, ये सब जो है वो ये सब सर अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। एग्जांपल के तौर पे बोला मैंने। ठीक है ठीक ठीक है, सबके सही है कुछ क्वेश्चन, बट मैं और अच्छे से ब्रीफ कर देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, राइट। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि फंक्शनल में हमेशा हम ना क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी फीचर की बात करते हैं, जैसे कि यूजर कैन अपलोड द इमेज, ठीक है, यूजर पेमेंट कर सकता है, यूजर ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यूजर सर्च कर सकता है, राइट। तो ये जितनी भी चीजें होती है जिसमें हम हमेशा क्वांटिटी की कुछ ना कुछ क्वांटिटी कुछ ना कुछ फीचर की बात करते हैं, वो होती है हमारी सिंपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगर हम जहां भी ठीक है। किसी क्वालिटी की बात करें, जहां क्वालिटी की बात आती है, याद रहे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमेशा क्वालिटी की बात करता है, हमेशा क्वालिटी की बात करता है, सॉफ्टवेयर की, ठीक है। एप्लीकेशन की क्वालिटी इन द सेंस की परफॉर्मेंस। जैसे कि अब अपलोड हमें करना है, अब कस्टमर एक फीचर है अपलोड बटन का, वहां पे अपने इमेज को अपलोड कर सकता है, ठीक है, वो तो हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बट जो कस्टमर हम्म। है जो इस इमेज को जब अपलोड कर रहा है तो वो विद इन 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए, विद इन 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए, तो वो होती है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम वहां पे किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हाँ, ठीक जैसे है, कि कितने बेसिकली देर में टेक्निकल download पर्सपेक्ट आ होगा। गया हमारा नॉन फंक्शनल। हैं। हाँ, मतलब जो क्वालिटी की जहां भी हम बात करें, जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया, जैसे संकेत ने बताया था कि हर एक ब्राउजर पे सपोर्ट करना चाहिए, तो कंपेबिलिटी हो गई आपकी, राइट। परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गई, जो भी डेटा दे रहा है क्लाइंट हमें उसका डेटा लीक नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे डीडीपीआर का यूरोपियन का रहता है आपका, तो हर चीज हम जब जहाँ पे हम क्वालिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, राइट, आपको कंफर्टेबिलिटी, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो होती है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जब हम एफआरडी को एक्सप्लेन करते हैं तो सारी चीजें लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं अपलोड का ही, कि हमने लिखा है कि हमें एक अपलोड का फीचर चाहिए जहां पे क्लाइंट अपलोड कर सकता है। अब इसमें भी हम कैसे डिफाइन ठीक है। करते हैं कव्यांश, जैसे कि आपने अपलोड को लिख दिया कि जहाँ पे हम कस्टमर से कुछ अपलोड करवा रहे हैं, तो अब कस्टमर से जब ठीक है। अपलोड करवाएंगे तो हमें ये चीज भी तो लिखना पड़ेगा ना कि मिनिमम फाइल कितना रहेगा और मैक्सिमम फाइल कितना रहेगा। जब हाँ, जैसे करेक्ट आपने, करेक्ट। हाँ राइट, हाँ तो आपने correct। देखा भी होगा मल्टीपल वेबसाइट पे कि मिनिमम अगर 10 से करते हो तो उसमें नोटिफिकेशन देता है कि नहीं कर सकते आप, तो वहां पे हाँ। एज ए बी आप ये डिफाइन फोटोग्राफ करोगे ना। अपलोड करते वक्त भी काफी समय मतलब नोटिफिकेशन आता है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एज ए बी आप ही को डिफाइन करना होता है वहां पे कि मिनिमम फाइल जो रहेगा 50 KB तक कर सकता है क्लाइंट, अगर 1 KB करना चाहे तो कस्टमर नहीं कर सकता, और मैक्सिमम फाइल 5 MB तक कर सकता है। ये तो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है, बीआरटी के अंदर लिख दिया अपलोड फीचर के अंदर। दूसरा आप ये लिखोगे ठीक है। कि
जो फाइल टाइप है वो क्या क्या सपोर्ट करेगा, कि जो कस्टमर है जब अपलोड कर रहा है ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो पीडीएफ भी कर दे, जीपीजी भी कर दे, पीएनजी भी कर दे, डॉक फाइल भी कर दे, नहीं, आपके ठीक है। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपलोड फाइल में क्या क्या टाइप लेनी है। जैसे अगर आपको ये चाहते हो कि आप पीडीएफ नहीं कर सकते जी, आप सिर्फ पीएनजी और जीपीजी फाइल में ही सपोर्ट करवा सकते हो, तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हो कि जी सिर्फ ये जीपीजी फाइल और पीएनजी फाइल सपोर्ट करेगा तो वो वही करेगा। अगर आपने लिखा कि पीएनजी भी कर सकता है, डीपीडी पीडीएफ भी कर सकता है, जीपीजी भी कर सकता है, तो वो जब अपलोड करेगा यूजर इजीली अपलोड कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग। जब एफआरडी बना के आप देते हो तो कोडर उसको कोड करता है। ये नॉन फंक्शनल में आ जाता है हमारा, नहीं फाइल नहीं टाइप नहीं और मिनिमम है। नहीं नहीं नहीं, ये सब फंक्शनल में है, ये सब फंक्शनल में है सब अभी भी। फंक्शनल में। हाँ ये सब फंक्शनल में, ठीक है। क्योंकि आप फंक्शनल है ना, तो आप फंक्शनल में डिफाइन कर रहे हो ना कि जी मिनिमम फाइल ये रहेगा, मैक्सिमम फाइल ये रहेगा, फाइल टाइप ये सपोर्ट करेगा, है ना। उसके बाद ये भी आप ठीक है। फीचर डाल लो कि फाइल अपलोड करने के बाद से गलती से अगर वो फाइल कुछ और अपलोड कर दे, कभी कभी मल्टीपल, जैसे आप कस्टमर हो, हम्म, आपको कुछ अपलोड करना होता है तो हम्म, गलती से कोई और इमेज कर दे, तो ये भी फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि जो हम्म, इमेज अपलोडेड है उसको डिलीट भी करने का ऑप्शन होना चाहिए, तो वो भी आपको लिखते हो एफआरडी के अंदर। तो ये सारी फंक्शनल हम्म, रिक्वायरमेंट जाती है। बट अब यहीं पे जब यूजर अपलोड कर रहा है तो अब उसका टाइम भी तो होगा ना यार। टाइम कैसे होगा कि ऐसा नहीं कि हमने फीचर तो बना दिया, अब जब क्लिक पे किया अपलोड कर रहा है तो उसको 10 मिनट लग गया अपलोड करते हुए, अपलोड ही नहीं हो रहा, वो 15 मिनट लग गया। तो हमें नॉन फंक्शनल में ये हम्म, भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि जब उसको यूजर अपलोड करेगा तो विद इन 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए। तो हम्म, जब हम इसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में लिखते हैं कि जब 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए, तो उस वक्त जो डेवऑप्स टीम होती है, जो डेटाबेस वगैरह, जो हमारा पूरा क्लाउड का सिस्टम रहता है, हम उस अकॉर्डिंग उसको इनबिल्ड करते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम, ठीक जो है। हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हो, फास्ट हो। ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये अब? हाँ ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। आपको क्लियर हुआ अंकुर, सबको, संकेत, सबको, आपको? हाँ सर। हाँ, यस सर। बाकी देखो यार, अब तो मतलब मोस्टली 1 घंटा हो गया है, ठीक है। और अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट डाउट रह गया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आपस में कोई डिस्कस करना हो आप लोग कर सकते हो, और कोई डिस्कशन हो, कोई क्वेरी हो। सर आप मतलब लास्ट क्वेश्चन है, हम्म। आप अपनी डे टू डे लाइफ में एज ए बिजनेस एनालिस्ट एआई का मतलब कितना यूज करते हो? सच बताऊं तो यार देखो, आज के टाइम पे मुझे 6 ईयर हो गया, आज से 1 1.5 साल 2 साल पहले जब चैट जीपीटी वगैरह नहीं आया था मार्केट में, तो मैं ऐसे जनरल सारे काम करता था। बट काम सारे करता था, बट जो काम मुझे 5 घंटे 6 घंटे करने में लगते थे ना, आज के टाइम पे मैं एआई यूज करके उसको 2 घंटे 1 घंटे आधे घंटे में भी कर लेता हूँ मैं। हाँ। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ कि जैसे मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, ठीक है, तो हम्म। डॉक्यूमेंटेशन करना होगा तो उस पे क्या करना होता है कि अब सपोज मान लो कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या टर्म्स रहेगा, क्या क्या, मैं अपनी रिक्वायरमेंट एक प्रॉम्प्ट दे दिया चैट जीपीटी को लिख के कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, कुछ आप मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया उसको, कुछ सजेस्ट करो, तो मुझे सजेस्ट कर देता है कि ये बुलेट पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो। तो वो वहां से हम हेल्प लेते हैं, एआई का हम हेल्प लेते हैं, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम चीज़ों को उसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। कभी भी बीइंग अ बीए आपको कहीं कॉपी पेस्ट तो कहीं से करना ही नहीं है, आपको अपना माइंड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोशिश करोगे ना कि मैं एआई का हेल्प लेके मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कहीं भी डाल दूं उठा के, तो वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में जाके चीजें फिट नहीं बैठती हैं। एआई आपकी हेल्प कर सकता है, तो ये देखो यार, हेल्प तो आज के टाइम में हर कोई ले रहा है और मैं भी लेता हूँ। मतलब जो काम मेरा 5 घंटे का था, वो काम मैं अब 2 घंटे आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन। हाँ हाँ, ह्यूमन इंटरवेंशन तो बीए के रोल में रहता ही रहता है यार, यस। लिटरली रहेगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप एआई से सब कुछ करवा लो, क्योंकि हाँ। रिक्वायरमेंट आप कितनी भी मर्जी दे दो चैट जीपीटी को, एआई को, वो चीजें समझ तो लेता है बट एक्यूरेट आंसर आपको नहीं दे सकता, वो एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो यस। एआई हेल्प करता है, नो डाउट एआई बहुत हेल्प करता है। आपका जो रेशियो रहेगा ना 5 6 घंटे का, उसको और कम कर देगा, वो जो और जल्दी करके दे देता है। तो आप हेल्प लो एआई का, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द एंड आपको ये उसमें वैलिडेट हमेशा करो कि जो मैंने हेल्प लिया वो सही है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, इलॉजिकल तो नहीं है। कई बार बर्ड्स वर्ड्स दे देता है, वो बर्ड वर्ड्स लिख के दे देता है हमें, तो हम पता चलता है कि कितने लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट वहीं से उठा के कर देते हैं, और वो वर्ड्स जनरल लाइफ में समझ आते हैं इन लोगों को। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बज वर्ड्स नहीं हो चीजों, है ना। हाँ सर। राइट, क्लियर हुआ सबको, आपको कव्यांश, अंकुर? यस सर। हाँ ठीक अच्छा, बीए से रिलेटेड एक सिचुएशनल क्वेंसर सिनेरियो वगैरह के, आई थिंक मैंने एक अपना ई बुक भी लॉन्च किया, तो आई थिंक किस किसने परचेज किया यहाँ पे? है। मैंने मैंने 2 तो बार नहीं किया किया सर अभी फिलहाल। है। हाँ, कव्यांश का इशू था कुछ पेमेंट का। आपका, मैं अभी बात चल रही है, आपका टिकट मैंने रेज किया हुआ है वहाँ पे कव्यांश। अंकुर आपने भी परचेज किया था ना?
आई थिंक। नो सर, नो सर, अभी अच्छा, नहीं आपने किया। परचेज नहीं किया था। संकेत, आपने किया है? नहीं सर, अभी करूंगा। ओके ओके, देख लेना यार, कर लेना, काफी अच्छी बुक है काव्यांश, यही पे काव्यांश ने एक्सप्लोर किया हुआ है। कैसा था काव्यांश ये बुक, कैसा लगा आपको? सही था। मतलब हाँ सारे क्वेश्चन वगैरह इसमें कवर थे, अलग अलग सिनेरियो। हाँ, सिनेरियो थे, एग्जाम्पल भी प्रॉपर मैंने दे रखा उसमें। हेल्पफुल लगा आपको आपने मेरी काव्यांश? लिंक्डइन वाली पोस्ट लाइक नहीं करी कल। अच्छा, वो जस्ट आपने जो किडिंग। शेयर किया है। नहीं नहीं, सर, जस्ट किडिंग, जस्ट हाँ, मैं लाइक कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कमेंट भी कर देता हूँ यार, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। डोंट, प्लीज डोंट बी माइंड। नहीं राइट, अच्छा, जॉब नहीं नहीं लिया नहीं, आपने ऐसे यार, बोलो। बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे अच्छा लगा। कुछ हेल्प मिला हाँ, आपको जो? काफी काफी अच्छा काफी मतलब बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा, जैसे जो लास्ट कंपनी थी वो स्टार्टअप ही था। अच्छा ठीक अच्छा है, तो उसमें मतलब ग्रोथ वगैरह कुछ हो नहीं रही थी, तो यहाँ पे अच्छा। मतलब मैंने काफी 3 4 राउंड इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मेरे पूरा वायर फ्रेम बनाया। उन्होंने हम्म। बेसिकली जो हमने केस स्टडी डिफाइन करी वही दिया, ग्रेट टेलीकॉम का। ग्रेट। अब आई आई नो हाउ टू यूज बाल्समिक, तो मैंने चैट जीपीटी से थोड़ी रेफरेंस ली कि मतलब कि हम केस स्टडी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या समझ आया। फिर ओके। उसके थ्रू वायर फ्रेम डिसाइड करे जो मेन प्रॉब्लम थी। फिर वो प्रेजेंट किया, फिर इंटरव्यू राउंड हुआ। ग्रेट तो वो ग्रेट धीरे क्रैक हुआ 3 4, तो फिर उसके बेसिस पर ही। ग्रेट, चलो यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। और ये बताओ कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किए थे जो पढ़ने के लिए, वो हेल्पफुल हुआ आपका उसमें? हाँ, वो बीआरडी वाला जो था वो अच्छा था। वो आप एक मेरे को बस एक आपका आपकी तरफ से वो लास्ट रह गया, वो एफआरडी वाला। एफआरडी वाला मैंने शेयर एफआरडी किया नहीं था, था। मैं और भी कुछ बना रहा हूँ यार, थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पाता कभी, मैं और भी बना के आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। हाँ ठीक है, वो हाँ तो कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ, मैं आपको और थैंक यू। अच्छे से शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ई सर बुक मुझे भी हाँ क्वेश्चंस शेयर है करो। जी। मैंने भी अभी दो एक महीने में स्टार्ट करने वाला हूँ स्विच आप कर। प्रिपरेशन यार, टाइम मत लो, स्टार्ट कर दो, नहीं नहीं, भी ऐसे। स्टार्ट कर दिया है, पर हाँ अभी हाँ, स्विच स्टार्ट थोड़ा। करो आप लोग। ठीक है यार, लिटरली मैं मतलब लिटरली मैं अभी तक 150 लोगों को मैंने सेशन दिया है, 1 to 1 भी। तो हाँ मैं हाँ हमसे सबसे यही बोलता हूँ कि यार प्लीज अपना एफर्ट लगाओ। मल्टीपल लोग यही करते हैं कि 5 10 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अगर हाँ। कंसिस्टेंट रहोगे तो 100%, अगर 2 महीने भी कंसिस्टेंट आपने प्रिपरेशन कर लिया तो यार कोई भी बंदा इजीली जॉब ले सकता है। सर ये मुझे। वाला एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। हाँ जैसे मैं अभी मैंने बीबीए कर एक ग्रेजुएशन करके मैं हाँ बीए में लग गया डायरेक्ट, ठीक हाँ है। हाँ हाँ मैंने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लिया। अब हाँ मैं सोच रहा हूँ एक एमबीए भी बिजनेस एनालिस्ट स्पेसिफिकेशन में करना सही रहेगा या कोई हाँ, सर्टिफिकेशन, कर क्योंकि लो मैं कर लो, बहुत बढ़िया कंफ्यूज हूँ। रहेगा, बढ़िया रहेगा, कर लो, डोंट वरी, एमबीए कोई नहीं करूँ होगा। या सर्टिफिकेशन? नहीं, एमबीए कर लो ना, अगर आप एमबीए कर सकते हो तो एमबीए तो मास्टर डिग्री है ना। तो आप, हाँ, वो मैं बिट्स पे लानी थी, एक बीबीए का बात है, बीए का। हाँ, तो तो इसलिए मैं पूछा। आप आराम से एमबीए करो, एमबीए यार आपके मास्टर्स भी हो जाएंगे सर। बट उसमें भी क्या है ना कि बहुत हाँ, सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो अभी के टाइम में बिजनेस एनालिसिस का एक प्रॉपर एक स्पेशलाइजेशन दे रही हैं। तो आप वो चूज करेक्ट कर लेना, करेक्ट। है ना, और वीकेंड वाली वही कर क्लास रहा हूँ चूज मैं, कर एक बिट्स लेना। पे लानी। हाँ, हाँ वीकेंड वाली हाँ क्लास आप चूज कर लेना, सैटरडे संडे को 3 3 घंटे हाँ क्लासेज होते हैं, आप अटेंड करो, मेहनत हाँ करो, 2 साल में एमबीए भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और आपके पास और अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं यही सोच रहा ठीक है, उसके बाद आप सीबेप के लिए जा सकते हो, सीबेप थोड़ा सा यार हार्ड रहता है, ठीक है, सीबेप में पैसा भी ज्यादा हूँ। लगता हाँ, है तो मैं सीसीबीए के लिए अप्लाई करने की सोच रहा था, सीसीबीए सीसीबी मैंने भी सर्च आप किया था कोर्स, करो, तो बट वो बट एटलीस्ट आई थ्री विल, साल का मांगते हैं। हाँ, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप ना सीसीबीए, आपको सीबेप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मतलब मैं यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सी सीबेप, वेब। हाँ, सीबेप इतना इजी नहीं है, आई नो डैट कि अभी इतना इजी नहीं है। बट अभी अच्छा, से प्रिपरेशन करो तो 2 साल 4 साल में आपका हो जाएगा, कर सकते हो। क्योंकि यार देखो, पैसा तो फुल आप फॉर्म क्या होगी एक बार ये बताओगे इसकी? सर्टिफिकेशन बिजनेस एनालिसिस जो होता है ना सीबेप का आपका, वेट, सी मैं वेब, दिखा, सीबेप सीबेप, सर्टिफिकेशन इन बिजनेस सीबीएपी, एनालिसिस। नो नो यार, वेट वेट, मैं, प्रोफेशनल। नहीं मैं आपको हाँ, सर वो प्रोफेशनल। 19,000 तो वो अपना इसका ही लेते हैं, मतलब सॉरी, ज्वाइनिंग। हाँ, उनका बहुत रहता है, मतलब हाँ, बहुत फीस बहुत ज्यादा है उनका, मतलब बहुत ज्यादा फीस है, 30 40 हजार रुपये अप्रोक्स आपको सिर्फ एग्जाम में बैठने के लगते हैं उसके। हाँ, और आई सीबीएसई के तो आईएबीए ज्यादा का रहते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए ना? सीबीआई के वो 19,000 वो पार्टिसिपेशन, और बाद में 20,000 अलग से, मतलब 40,000 का तो सीबीआई है उसमें। सीवेब का रहता है कि सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल हो गया आपका सीवेब में, हम्म। ठीक है, और ईसीबीए हाँ, का उसमें रहता है लेकिन एंट्री वो लेवल सात का साल का रहता है। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हाँ, नहीं वो आप, 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे नहीं, एक्सपीरियंस तो मांगते हैं, साथ ही साथ इसमें एक और कर सकते हो, पीडीयू जो वगैरह होती हैं किसी भी, जैसे इंटेली पाथ या हैं। सिंपल का पीडीयू अगर 32 घंटे का आप अटेंड कर ले तो फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हम्म। हो। अच्छा, और इसमें एक और सर्टिफिकेशन है, पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके ये कुछ, तो वो वाली बेटर रहेगी या सी बैक?
इसमें बहुत कंफ्यूजन देखो हो जाता यार, है। मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ सीबैप ही। लेकिन सीबैप को मैं यही रिकमेंड करता हूँ, आप तुरंत नहीं बैठो। आपको जब लगे कि हाँ मैं मतलब हाँ बहुत ज्यादा प्रिपरेशन, मुझे सब कुछ आता है, तभी आप बैठो। क्योंकि देखो यार, बहुत सही चीज है सीबैप भी, ठीक है, और सीबैप अच्छा चीज है, बट टाइम लो थोड़ा सा, अच्छे से प्रिपेयर करो तब बैठो। सीबैप ही रिकमेंड करूंगा। देखो पैसा तो हर जगह लग ही रहा है, बट एटलीस्ट पैसा वहां लगाओ करेक्ट। जिसकी ज्यादा वैल्यू हो। पहले एमबीए करने के बाद मतलब हाँ, सीबेट के लिए एमबीए ट्राई कर लो, करो, आप पहले एमबीए नहीं करो, कर। उसके बाद सीबैप के लिए आप हाँ प्रिपरेशन कर लो। राइट। ठीक है ठीक है। राइट। सर मैं अभी फिर वो सर्टिफिकेशन तो मतलब मैंने वो कोर्सेरा के उठाए थे, मतलब आजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम्म वगैरह कंप्लीट किए, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एनालिस्ट वगैरह। हम्म। तो बाकी क्या क्या है आपका ओपिनियन, मतलब बाकी के भी करूँ या वो सफिशिएंट है अभी अभी के लिए? नहीं, अभी आप स्टार्ट करो उसको, ठीक है। जो भी आप स्टार्ट करो, एटलीस्ट लर्निंग करो, जहाँ से भी मिले लर्निंग करो। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में देखो हर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कराने के लिए बैठा है। मैं हाँ हमेशा हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ कि यार देखो, अगर आप मतलब फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल, अच्छे खासे हो, अर्निंग है, तो आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश ये करो कि चीज़ें कुछ है, मतलब छोट कम पैसे में भी, देखो पैसा तो लगता है हर जगह पे, हाँ बट भाई। थोड़ा सा कम पैसे में अगर अच्छी चीजें मिल रही है आपके एनालिसिस पे, तो वहां पैसा लगाओ। और साथ ही साथ आप जो है ना अपने मतलब जो व्हील पावर होता है ना, उस पर ज्यादा फोकस करो। व्हील पावर मतलब कितने टाइम पे होता है कि हम खरीद तो लेते हैं कोई भी कोर्स, बट उस पर कंटिन्यू नहीं रह पाते। हाँ भाई तो मतलब हाँ, तो करते। वो कंसिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी इंसान कंसिस्टेंट 2-3 महीना में किसी भी चीजों पे काम कर ले तो उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है वो। कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाँ नहीं कि 10 दिन आपने काम किया फिर छोड़ दिया, 15 दिन बाद फिर काम कर लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं काम चलता है। कंसिस्टेंट रहोगे तो यार चीजें मिलने लगती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन है, अगर फ्री में है तो उसको करो, सीखो। अगर कुछ पैसे भी लग रहे हैं वहां भी दे के सीखो, कोई दिक्कत नहीं। करो, लर्निंग करते रहो आप। सर मैं आपसे अभी इस वीकेंड पे 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ टॉप हाँ, में। देख लेना, टॉपमेट पे आप बुक कर लेना, उसमें हमारा हाँ रहता है, है ना उसमें कर आप? ले। वीकेंड। हाँ, कर लेना। और बाकी कव्यांश, जो मेरी ई बुक थी आपकी, जो उसमें जो क्वेश्चंस आपको आंसर करने का था, उसमें कुछ मिला आपको हेल्प, जो उसमें जो क्वेश्चंस मैंने डिफाइन किए थे? मैं वो इतना सडन हुआ वो मैं पढ़ ही नहीं पाया, उसमें आपने शायद मॉस्को टेक्निक वगैरह भी सारा लिखा हुआ था। तो मैं हाँ वहां जाके ब्लैंक हो गया, मैं मेरे को समझ ही नहीं आया मॉस्को टेक्निक होती क्या है। रिस्क असेसमेंट भी लिखा हुआ था उसमें, आगे जाके लिखा हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ। मतलब तो अगर आप वो पूरा फोर्टी पढ़ते तो फाइव काफी फिफ्टी हेल्प मिल क्वेश्चन थे। जाता। हाँ पूरा पढ़ता बाकी, तो वो तो बिल्कुल ही फ्लुएंट निकल जाता। हाँ बाकी मतलब ई बुक हेल्पफुल लगा आपको? बढ़िया बढ़िया, क्योंकि यार मतलब बहुत मेहनत से हाँ 15-20 दिन। हाँ नहीं वो मैं सर दिख ईबुक गया का था क्योंकि कॉस्ट क्या वो पड़ेगा चैट सर? जीपीटी, चैट सॉरी। जीपीटी वाली बुक नहीं है वो, मैं समझ गया था। हाँ, वो चैट जीपीटी वाली नहीं है, वो मैंने खुद से अप्रॉक्स 15 से हाँ 20 खुद दिन की मैंने। हुई है। हाँ राइट, तो मैंने मतलब आप उसको जब पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर 105 सिचुएशंस हैं, मतलब प्रॉपर उसमें 105 सिचुएशन के कैसे आंसर करने हैं, हाँ और एग्जाम्पल क्या है वो हम्म। प्रॉपर एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें सही तरीके से। पूरा लाइफस्टाइल ही बताया हुआ है उसमें कि बेसिकली क्या परफॉर्म करता है बीए, होता ही क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो बहुत हेल्पफुल है। रहता है, आई थिंक सर मैं हेल्प। अभी परचेस करता हूँ आपकी बुक। राइट राइट, आपको मैं लिंक सर भेज दूंगा आप। मेरे को ही सर परचेज करना है सर। हाँ बिल्कुल, मैं आपको भी भेज दूंगा अंकुर। ठीक है, आप उसको देख लेना यार। अभी मैंने कॉस्ट भी उसका ज़्यादा नहीं रखा है एक्चुअली, बस मैंने 99 रुपीज़ लिए रखा है कि यार मतलब 15-16 दिन मैंने बहुत मेहनत किया उस पर। तो बस थोड़ा सा अपना यार जो एफर्ट होता है वही मैं लेता हूँ, बाकी इतना मतलब वो नहीं रहता है मेरा, ताकि लोगों की हेल्प मिल दैट विल जाए। बी फाइन सर, दैट विल बी टोटली फाइन सर। राइट राइट। आपने इतना मतलब हम लोगों के लिए आप इतना कर रहे हैं। ऑलवेज आपके लिंक्डइन पे पोस्ट रहते हैं, हम लोग जितना टाइम मिलता है हम देखते हैं सर। लाइक्स एंड कमेंट्स भी हमारे रहते हैं। एंड राइट यू हैव टेकन दिस एफर्ट टू गाइड अस फॉर 1 आवर ऑन द ईव ऑफ द, आज भी आपका भी वीकेंड होगा, वीकेंड क्या मतलब छुट्टी होगा, सब कोई राइट एंजॉय राइट। रिलैक्स करना चाहता है, स्टिल दो यू आर taking the your valuable time for us, sir. So थैंक यू। it is a literally a good thing. थैंक यू सो मच अंकुर, थैंक यू सो मच यार, लिटरली। मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं भी था ना आपके स्टेज में, तो मैंने भी जब मेरी एमबीए, और मैंने भी बैकग्राउंड जो मेरा बीसीए और एमबीए मैंने किया था, तो जब मैं मार्केट में आया ना जॉब लेने के लिए, तो मैंने भी देखा यही हाल है। मतलब मैं, यू कांट बिलीव कि मैंने बीए की ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। वाह। मतलब बहुत पैसे बहुत इन्वेस्ट अच्छा। करे,
पैसे इन्वेस्ट करे, बट सही से एक रोड मैप नहीं मिल पाया मुझे कि करना क्या है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, अच्छा टैबलू भी सीखना है, सीक्वल भी सीखना है, पावर बीआई भी सीखना है, कोई बोलता था आर सीख लो, कोई बोलता था कि पाइथन सीख लो, कोई बोलता था अरे नहीं ये सीबेप कर लो, कोई बोलता था ये कर लो। मतलब एग्जैक्ट जो क्या करना है वो काफी लोगों को अभी भी स्टिल पता नहीं है। अगर ये रोड मैप किसी को क्लियर हो जाता है कि करना क्या है तो वो इजिली इंसान अचीव कर लेता करेक्ट है। करेक्ट राइट करेक्ट। एग्जैक्टली सर। वही सर, राइट। मुझे भी आपके जैसे लोग कंफ्यूज करते, बैंकिंग सीख लो, यूएसएल कर सीख लो ऐसे। वो तो यार मतलब देखो बीइंग ए ह्यूमन हमें पॉसिबल नहीं कि हम हर चीज सीख लें, हमारा भी एक माइंड लिमिट रहता है, हमारी पर्सनल लाइफ भी रहती है, सारी चीजें रहती है। तो बट हमें अगर प्रॉपर रोड में एक छोटा सा मिल जाता है तो इजिली हम उसको अचीव कर लेते हैं। बट एटलीस्ट तो वही मैं काम करता हूँ कि यार आपको करना क्या है एक्चुअली। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा पावर बीआई सीख लूंगा तो मैं बीए बन जाऊंगा। अरे यार पावर बीआई अलग चीज होती है। बीए में भी दो रोल होता है, एक तो फंक्शनल जो बिजनेस एनालिसिस होता है, एक बिजनेस एनालिटिक्स होता है जो वो डिफरेंट होता है, उसमें सर वे बीए का कम डीए ज्यादा होता है। प्लेन वैनिला भी अलग होता है, और वो जो एनालिटिक्स पार्ट वो अलग होता है। हाँ वही। वो अलग होता है, उसमें हाँ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की अलग अलग होती है। बिजनेस एनालिसिस में आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, प्रोसेस फ्लो चार्ट बना रहे हो, वायर फ्रेमिंग कर रहे हो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हो, उसको प्रोडक्शन पे कर रहे हो उसकी वेबसाइट को या फिर उसकी लाइफ को। बट बिजनेस एनालिटिक्स वर्क में क्या रहता है कि आप डेटा के साथ खेलते हो, उसमें बीए कम डीए का रोल ज्यादा रहता है। आप उसकी सीक्वल पे क्वेरी चला के उसका डेटा फेच करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, उसके डेटा को ट्रेंड को समझते हो, उसके बाद उस ट्रेंड को आप डैशबोर्ड पे कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ टैबलू या फिर पावर बीआई। उसके बाद उनको रिकमेंड करते हो कि क्या उस पे उनकी डिसीजन रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। तो उनका थोड़ा रोल अलग रहता है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहती है। यस। राइट, तो ये फर्क है दोनों में। राइट। बाकी यार आप लोग जुड़े हो मेरे से, ठीक है, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए वी आर हाँ। ऑलवेज। मैं कव्यांश का भी काफी बार मैंने काफी बार उन्होंने पूछा है तो मैंने हेल्प किया है। थोड़ा सा बिजी रहता हूँ बट जब भी मैं फ्री होता हूँ आंसर कर देता हूँ। राइट कॉन्ग्रेचुलेशन। कव्यांश। या मेनी मेनी थैंक यू थैंक कांग्रेचुलेशन। और मैंने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजा है यू। अभी। हाँ मैंने कर लिया है सर। मैंने आपको मैं तो टेस्टिमोनियल कनेक्ट हूँ भेज दिया आपसे है। कभी से, पर कभी डायरेक्ट मैसेज नहीं किया था। बाकी यार एक बार नहीं नहीं जस्ट कनेक्ट फॉर है वाइल सर। अ मोमेंट कैन यू ऑल स्विच ऑन योर कैमरा फॉर जस्ट वाइल अ मोमेंट। यस यस एब्सोल्युटली। 1 मिनट सर। या श्योर। मैं एक्चुअली बाहर था तो मैं अभी वो कोई कैमरा ऑन नहीं कर कोई पाऊंगा, बात नहीं, उसको कोई बात इनवाइट नहीं आ जाए। कव्यांश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस सर। बस थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा। थैंक यू यार। या श्योर। और किसी के क्वेश्चन कोई डाउट? नहीं सर। ओके नहीं सर। चलो ठीक है अंकुर और हेलो। संकेत, ऑल द बेस्ट यार। और मैं एक बात दोनों से एक बात बोलना चाहूंगा, कव्यांश का जॉब लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, बहुत डेडिकेटेड बंदा है ये। ठीक है, बहुत हाँ हाँ। डेडिकेटेड बंदा है, ये डेडिकेटली लगा हुआ था, इसकी सर आप डेडिकेशन भी मुझे समझ आ गई थी। सर, राइट। हाँ टीचर भी डेडिकेटेड है और स्टूडेंट भी, इसलिए अच्छा जॉब मिला हमको। राइट, थैंक यू संकेत। क्योंकि कव्यांश जब मुझे मैं एक्चुअली मैं जॉब पे मीटिंग्स वगैरह में रहता हूँ वीकडेज पे, तो मुझे कव्यांश की मैसेज आते थे, तो इसका हाँ डेडिकेशन देख के मुझे लग गया था बंदा बहुत डेडिकेटेड है, तो काफी सर, अच्छा लगा। थैंक यू। काव्यांश की तरह गाइड करो, मैं आपको मतलब बड़ी पार्टी दूंगा सच में। बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब मेहनत करो यार, एट द एंड देखो मैं मतलब बस गाइड मेरा कर सकता हूँ। फोकस, हाँ सर, मेरा फोकस क्या एट है द कि एंड इट जस्ट यू। आप मतलब किसी के उस पर डिपेंड नहीं रह सकते कि ये करेगा वो करेगा। आपको खुद ही अपनी फाइट लड़नी पड़ेगी, खुद ही इंटरव्यू क्रैक करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली यू नो हाउ एग्जैक्टली। टू हैंडल द सिचुएशन। एग्जैक्टली इंटरव्यू को एग्जैक्टली आपको काव्यांश। कैसे। yes, yes, मुझे पता बाकी यार देयर इज है, नथिंग मैं भी इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था ना। तो बाकी यार मतलब ऐसा रहता है कि मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद पड़ेगा। हाँ सर। राइट, तो वो यस सर। चीजें हैं, बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छे से प्रिपरेशन करो। और बाकी मैं यार एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मैं एक और बीए की बहुत बड़ी ई बुक लिख रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जितना हो सके एक रियल लाइफ की जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो टेक्निकल हो, फंक्शनल हो, या फिर सीक्वल से रिलेटेड हो, या फिर आपको एपीआई से रिलेटेड हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मोर देन मैंने 50 इंटरव्यू दिए हैं। यू कांट बिलीव कि मैं 49 टाइम्स कितने टाइम्स रिजेक्ट हुआ हूँ इंटरव्यू में जब मैं इनिशियल फेज पे था। ठीक है, तो वो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो उस चीज़ को मैं एक सही तरीके से पूरा क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा इसी बुक में। तो वो भी बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, बट उसमें टाइम लगेगा अभी, वो मैं लिखना स्टार्ट करूंगा अभी बहुत जल्दी, प्लानिंग है मेरी। उसका तो आप प्राइस ही बहुत हाई रखोगे फिर।
इतना नहीं हाई रखूंगा, इजीली कोई भी अचीव कर लेगा। आज के टाइम में लोग नहीं मूवी तो करते जिसने पहले वाली ई बुक परचेज करी है उसे 50% तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना। अरे कर दूंगा भाई, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है। वो अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, मुझे लगता है कि हाँ डेढ़ हाँ। 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे मुझे लिखने में, क्योंकि काव्यांश, आपको अभी हाई पैकेज लगा है तो आप परचेस कर सकते हो ना। हाँ सर इतना एफर्ट भी कर रहे हैं तो कोई करने बात नहीं। करेंगे, आप कोई भी प्राइस रखो हाँ सर। बिल्कुल नहीं, इतना हाई प्राइस नहीं रखूंगा मैं, मतलब एक नॉर्मल प्राइस, ताकि कोई भी अफोर्ड कर सके। और प्राइस लेने का देखो सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना, कि देखो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उस आपने भी पैसे, एफर्ट डाले ना, इसलिए तो। हाँ एफर्ट का भी रहता है, और साथ ही साथ आप वैल्यू करोगे। जब आप कोई भी चीज पैसा देके खरीदते हो ना, तो आप उस चीज की वैल्यू करते हो। अगर कोई चीज फ्री में आपको मिल जाए ना, उस चीज की वैल्यू नहीं करोगे, पढ़ोगे भी नहीं आप उसको। ये सच होता है, बीइंग अ ह्यूमन का ये एक बहुत बड़ा नेचर होता है। 200% agree, sir. सर राइट राइट। मेरा तो है सच में। हाँ हाँ, तो अगर आप जो पैसे दे के खरीदते हो तो सोचते हो अरे ये पैसा लगा यार, पढ़ लूँ। जैसे जिम का रहता है, जिम पे हम पैसा दे देते हैं तो हम जाते हैं। अगर हमारे जो फ्री में 3-4 दिन मिल गया ना, उसके बाद हम नहीं जाते। अगर वो पहले दिन ही पैसा पकड़ लेना हमसे, तो हम रेगुलर जाएंगे। यस वो सर। चीजें होती है, राइट। तो दैट्स वाई यार, उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक यही रहता है। ठीक है, यस, तो चलो थैंक गाइज, यू। ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप हैव अ नाइस प्रिपरेशन डे। करो, कभी भी चाहिए कनेक्ट रहो। ठीक ठीक है। है, बाकी मैं ई बुक की लिंक आपको भेज दूंगा, आप लोग इसमें देख सकते हो, खरीद सकते हो उसको। ठीक है, सर मैं आज आपको डायरेक्ट मैसेज करता हूँ तो प्लीज आप शेयर कर देना श्योर लिंक। श्योर श्योर। ओके ओके गाइज, बाय, ओके Sir, बेस्ट सर, ऑफ लक। हैव अ नाइस थैंक डे। link आप share कर देना बाय मेरे बाय। को. I will purchase that. ठीक है अंकुर, ओके ओके ओके, बाय बाय गाइज। बाय ओके, सर। बाय। Thank you for your session, sir. थैंक यू ब्रो। अच्छा, एक और इसमें है ना, अंकुर एंड संकेत, इस जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा, आपको एक टेस्टिमोनियल के लिंक जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा उसमें जो भी आपकी रेटिंग वगैरह होगी आप देख के, हाँ सर, हाँ और 5 सर। स्टार मैं रेटिंग आपको वो Definitely. क्या, तो आप शेयर करते हो ना जिसने फीडबैक दिया है वो। हाँ हाँ। आपका रोज चेक करता हूँ लिंक्डइन। अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोग के पास भी अभी जाएगा, जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो आप उसमें एक 5 स्टार रेटिंग, और प्लस जो भी आपके अच्छे वर्ड्स हो आपके साइड से, आप उसमें लिख देना। ठीक है, हाँ। Definitely, sir. No worries regarding that. श्योर श्योर। ओके अंकुर, थैंक यू। ओके संकेत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, Bye. टेक केयर। Bye. Thank you.